So we'll start our class with current affairs. Our first topic is Financial Inclusion Report 2019. So Financial Inclusion Report 2019. Okay. So as you know that financial inclusion is in your syllabus also. GS3 का topic है financial inclusion. So today we will detail this financial inclusion comprehensively. Okay. So anybody, what is financial inclusion? Yes, anybody? What is financial inclusion? I hope कि आप लोगों को आवाज आ रही होगी मेरी. Is everybody is getting my voice? Yes, sir. Okay. So financial inclusion basically जैसे हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में. Okay. हमने क्लास में डिस्कस भी किया है. So financial inclusion basically मतलब होता है कि financial services मिलना at the bottom most part of our country. If everybody, even the person from rural areas, even the person from tribal areas, if everybody or if the more people are getting the financial services, that means we are moving towards financial inclusion. That means everybody is included in financial services, for financial services. So इसका मतलब होता है financial inclusion. And this is a topic. This is in your syllabus. Okay, financial inclusion GS3, and that is why it is important for prelim as well as mains. So there was recently a Global Microscope 2019, the Enabling Environment for Financial Inclusion report. Okay, Global Microscope 2019. इसका short में ऐसे बोलते हैं Financial Inclusion Report 2019, but its formal name is like this: Global Microscope 2019, the Enabling Environment for Financial Inclusion. This is a formal name of this report. And this report is released by or published by the Economist Intelligence Unit in November 2019. EIU. This report is released by, इसका नाम याद रखना आप लोगों ने, Economist Intelligence Unit. So this report is released by this Economist Intelligence Unit. इससे पहले और भी इंडेक्स हम लोगों ने पढ़ी थी जिसमें कि जो कि रिलीज कर रहा था Economist Intelligence Unit. What are those reports which are published by Economist Intelligence Unit? Any idea? So ये अपने नोट्स में है कुछ इंडेक्स हमने किए हैं which were released by the Economist Intelligence Unit. तो ये सब याद रखना आप लोगों ने, बिकॉज एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं. इनफैक्ट यदि आप लास्ट ईयर का एग्जाम उठा के देखो तो उसमें सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं कि ये रिपोर्ट इसने रिलीज की थी. ये हर साल इस पे क्वेश्चन आ ही रहा है इंडेक्स के ऊपर, प्रीलिम में तो आ ही रहा है एटलीस्ट, एंड इट्स यूजफुल फॉर मेंस आल्सो बिकॉज फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर यदि क्वेश्चन आता है देन हाउ यू विल जस्टिफाई दैट इन अवर इंडिया still we are lagging in the financial inclusion, or we are getting better in financial inclusion. So to justify your statement you need these kind of indices. Okay, so these kind of indices are important for prelim as well as mains. So yaad rakhna ki this financial inclusion index is released by Economist Intelligence Unit. This microscope was originally developed for trick भी हमारे पास because ये financial inclusion economics से related है. And so name Economist Intelligence Unit as याद रखना. So this microscope was originally developed for countries in Latin American and Caribbean regions in 2007 and was expanded into global study in 2009. So जब ये report start हुई थी 2007 में, then it was meant for the Latin American countries. And what are the Latin American countries? किन countries को Latin American countries बोलते हैं? Yes, any idea? So, Southern American countries. South. That's right. South America.
Southern American countries are called these Latin American countries because वो जो language बोलते that was Latin. Okay, and Latin was an ancient European language, and because the Southern America was occupied by the Spain mostly, most of the part of the area of the Southern America was occupied by the Spain, and that is why these people started speaking in Latin, and that is why this country is called Latin America. And then Caribbean regions in 2007 and was expanded into a global study in 2009. And 2009 में ये पूरा globally या worldwide ये report use होने लगी. Okay. This report assesses the enabling environment for financial access in 55 countries. And obviously these 55 countries are developing countries, are not developed countries. Because in developed countries, just like USA, it is already called the card economy or plastic currency. Okay. Or plastic economy. इस तरह के word वहाँ पर already use होते हैं. Why these kind of countries like USA are called plastic currency? Because they use debit or credit cards. Okay. So every kind of transactions. तो वो लोग money कम carry करते हैं. So every kind of transactions happen with the debit or credit cards or online transfers. Okay. So that is why these developed countries are already financially included. So their concern is about the report of this. The concern of this report was this about this developing countries. Okay. So now it is assessing the 55 countries. The microscope covers 5 domains: government policy support, stability and integrity, products and outlets, consumer protection, infrastructure. So ये जो 5 domain को consider करते हैं. Okay. The report to assess the parameters. But to rank the countries, there are 4 parameters based on which the ranking is made for various countries. The criteria आपको पूछते हैं, indicators पूछते हैं. So then these 4 parameters are criteria or indicators of this report, financial inclusion report. So one is the issuance of e-money by non-banks, presence of financial service agents. Issuance of e-money मतलब by non-banks. फर्ज करो आप किसी शॉप पे जाते हैं और यदि उसके पास POS सिस्टम है जिसके अंदर आप डेबिट कार्ड स्क्रैच करके परचेज कर सकते हो और उसके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है. ओके. So that means our country is doing good for the issuance of e-money by non-banks. So if the people are not using the currency and they are using e-money, then definitely that means that country is more financially included. Second parameter is the presence of financial service agents. So how many financial service agents are there? And these agents could be anyone. Okay. It could be NBFC, non-banking finance companies. It could be any other commission agents or it could be any other agent which is providing financial services. So penetration of financial services, that is related to the second parameter. Third is the effective consumer protection. If we are making online transactions, then how much consumer are protected? उनके जो online bank accounts हैं, okay, whether they are protected or not, because there is a cases of the data theft, there is a cases of the fraud. Okay. The third is related to the protection of consumers if they are making the online transactions. And fourth is the proportionate customer due diligence. Okay. Proportionate customer due diligence. That means how much customer are making, how much customer are preferring the e-money. Okay. The online transactions. Okay. So these are the 4 parameters. These are the 4 parameters which is about the financial inclusion. So this report said that 1/5 of countries included in this report improved their performance in the area of financial inclusion strategies. So 1/5 का मतलब इन्होंने 55 countries को analyze किया. So they are saying that 11 countries have improved on the part of financial inclusion, including India. So there are 4 countries who perfectly scored well in all 4 parameters. वो countries जिन्होंने चारों parameters पे अच्छा काम किए, these countries are
Colombia, India, Jamaica, and Uruguay. So all these 4 countries have done perfectly good in all these 4 parameters, and that is why India's rank is 5th out of 55 countries. India is also doing well in this particular report or index. So India's rank is the 5th. India has most conclusive environment for financial inclusion in terms of allowing non-banks to issue e-money, proportionate customer due diligence, and effective consumer protection. तो जो 4 पैरामीटर्स पढ़े थे उनमें से 3 पैरामीटर में इंडिया ने सबसे अच्छा किया इन 55 कंट्रीज में. But there is one parameter, that is presence of the economic service agents. Okay, in that parameter, India is some little bit lagging. Okay, and RBI has also set up why जैसे कि why India's rank has improved so much, because there was recently RBI has, yes, because of JAM. Yeah, definitely. There are many reasons. Because first of all, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, there is the release of the JAM, okay? That is the Jan Dhan, Aadhaar, and mobile integration, okay? So there are many factors because, and in fact, we have initiated with the white ATMs. And what are the white ATMs? Yes. Already, I think exam में आ चुका है ये क्वेश्चन. Yes. Anybody? ये हम लोग क्लास में बात की थी इसके ऊपर. इसको हम लोग काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं सब चीजों को. Yes, white ATM, the ATMs which are started by or created by the non-banking finance companies. तो जो बैंक्स नहीं होते, non-banking finance companies होती हैं, यदि वो ATM अपना रिलीज करते हैं, then these ATMs called white ATMs. तो ये already हम लोग पढ़ चुके हैं सब चीजें. And in fact, non-banking finance companies ये chapter in your economic survey, this year economic survey, it is very important. इसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे. Okay, as I get time, I will make a short notes and we will see. So RBI has also set, apart from that, recently RBI has also set up a high-level committee under the chairmanship of Nandan Nilekani. Okay, former UIDI, Unique Identification Authority of India. Anybody knows who is Nandan Nilekani? सर जो आधार का कंपनी थी उसका चेयरमैन. Right, ये तो UIDI चेयरमैन तो मैं बता ही रहा हूँ. Otherwise उससे पहले वो क्या काम करते थे? He was the chairman of Infosys company. Okay, private company Infosys, software company. So Nandan Nilekani was former chairman of Infosys company. And so एक तरह से collateral entry थी इनकी. Nandan Nilekani को basically उन्होंने chairman बनाया UIDI. Okay, so he is from private sector, and he is performed very well in this UIDI, in creation of the Aadhaar card and this implementation of the Aadhaar card under this UIDI program. So it done perfectly well, and that is why right now he was made a chairman of one committee. Okay, to recommend to suggest a strategy for increasing digital payments in our country. तो नंदन निलेकानी कमेटी बनाई गई थी recently. In fact, in January 2019, last year January 2019, में कमेटी बनाई गई थी under the chairmanship of Nandan Nilekani to suggest reforms so that our country could be digital economy. Digital economy का मतलब हमारे cash transactions कम हो जाए and we could make this online transactions. And why we are saying that our cash transactions should be reduced? Why government is approaching towards digital economy? Any reason? So digital transactions are recorded, so there will be transparency and less corruption. Right. So because as you said, this digital economy, if you to move towards digital economy, then there will be less corruption because every transaction will be recorded. So government को GST भी ज़्यादा मिलेगा. Okay, and government can easily assess, okay, that who much making how many transactions. Okay, and the economy will be a formal economy, and if there will be more cash transactions, the economy will be informal economy. Okay, that is why.
सो ये नंदन नीलेकानी कमेटी बनाई गई थी. ओके, now what are the recommendations of the Nandan Nilekani report? अभी इसको हम लोग काफी comprehensive करने वाले हैं, but if you will ask me that the most important question for the financial inclusion or GS3 mains this year, then that will be a financial inclusion report of Nandan Nilekani, or you can say the Nandan Nilekani recommendations for the digital economy. This is the most important topic for this year mains examination as well as prelim examination. Okay, इसको हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझना आप लोग इन सब चीजों को, बिकॉज अभी देखो होता क्या है कि जैसे मेंस में आपका सिलेबस डिवाइडेड है. ओके, सो अपने सिलेबस में मैंने बोला भी है कि बार-बार कि आप रीड करो सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक्स मेंशन्ड है. तो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड क्या होता है मेंस की प्रिपरेशन का, दैट जैसे मान लो आप देख लिए कि अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन एक टॉपिक है, उसका अपनी डेफिनेशन समझ ली कि व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन and what are the government schemes to achieve these financial inclusions, like as we discussed the JAM, जिसका क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी. आपको कोई JAM के क्वेश्चन आया था, but why the question came on JAM? Because financial inclusion in your syllabus. तो JAM financial inclusion से रिलेटेड ही है. ओके, तो इसका मतलब ये आप समझ लो कि मेंस में 80% करंट अफेयर आता है, 80 to 90% करंट अफेयर के टॉपिक से आते हैं. बट उसके लिए हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, उसके लिए हमारा जो हमारे जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो जरूरी है. ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, उसके बाद करंट अफेयर काम में आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो हम ऑलरेडी क्लासेस में कर चुके हैं, उसके बाद वो करना क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर कौन कौन सी कमेटी कोई आई है नहीं आई, कोई नई स्कीम आई है या नहीं आई. ओके, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और ये फिर प्रीलिम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सब टॉपिक्स. जैसे कि क्वेश्चंस फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर आते रहते हैं प्रीलिम में भी, लाइक वाइट एटीएम इसलिए क्वेश्चंस आते रहते हैं. ओके, अगेन these topics are related to the financial inclusion. Basically recently अब लास्ट ईयर की कमेटी है नंदन नीलेकानी. ओके, लास्ट ईयर कमेटी है, सो दैट इज व्हाई this is the most important topic for this year prelim as well as mains. So we'll see recommendations one by one. So first recommendation of Nandan Nilekani report is the targets for digital payments. Okay, targets for digital payments. So उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट एक नई टारगेट स्टैब्लिश करे कि हमें कितना डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव करना है. ओके, द नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स पर कैपिटा हैज risen tenfold from 2.4 in March 2014 to 22.4 in March 2019. These are the transactions. Okay, per capita मतलब per person जो कि बढ़ गए हैं 2.4 से 22.4 in March 2019. तो 5 years में 10-fold से डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ गए हैं हर एक पर पर्सन के हिसाब से देखें हम लोग. However, India is still behind many other nations in digital payments per capita, because this figure for China is 96.7 and for Brazil this figure is 148.5. So in this context, the committee has set the following targets to be achieved in 3 years. तो पहले हमने 5 years में जो 10-fold increase किया था, अब ये कमिटी बोलती है कि 3 साल में हम लोगों को फिर से 10 गुना इंक्रीज करना per capita digital transactions. So right now it is 22.4. I think Ishani has made call on Skype. So doesn't she know that we are on Zoom? No, sir. Okay, mistakenly हो गया होगा. Maybe कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे. Okay, so in this context, the committee has set the following targets to be achieved in 3 years. Okay, so 10-fold increase in the per capita digital transaction from 22.4 currently to 220. Okay, so currently हमारा जो per capita transactions है digital transactions है 22.4. इसको हम लोग 10-fold से increase करना चाहते हैं, means around 220 हम लेके आना चाहते हैं. This is our first target as per Nandan Nilekani committee recommendations. Second is the doubling the value of digital transactions as a percentage of GDP from 769% currently to 1500%. तो हम इसको ये तो जो number of transactions. Now this is the value of digital transactions in terms of money obviously.
and it's a percentage of GDP. So वैल्यू ऑफ मनी हम डबल करना चाहते हैं ट्रांजेक्शन्स की 3 साल में, ऑब्वियसली ये सारी चीजें हम लोग 3 साल में अचीव करना चाहते हैं. एंड थर्ड टारगेट इज, ये सारे टारगेट्स आपको याद रखने हैं, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम एज वेल एज मेंस. थर्ड टारगेट इज द ट्रिपलिंग द नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स यूजर्स फ्रॉम एस्टिमेटेड 10 करोड़ कंट्री टू 30 करोड़. तो पहला था नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, सेकंड था वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, थर्ड इज द नंबर ऑफ यूजर्स हु आर मेकिंग ट्रांजैक्शंस, एंड फॉर दैट वी वांट टू इंक्रीज बाय थ्राइस, 3 गुना से बढ़ाना चाह रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ यूजर्स. So this is the first point. This is the first recommendation, that it has set targets. Okay, targets for digital payments. Now we'll see what is the second recommendation. Second recommendation is about the payment mechanism. Currently, merchants pay a merchant discount rate to banks for accepting payments. तो ये याद रखना कि आपके एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आ सकता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट. मे बी पास्ट ईयर्स में कभी आया हो ये क्वेश्चन, और यदि ये क्वेश्चन नहीं आया पास्ट ईयर्स में, देन डेफिनेटली दिस ईयर देयर इज वेरी मच चांस दैट दिस क्वेश्चन विल कम, बिकॉज़ नंदन नीलकणी ने नंदन नीलकणी कमेटी में इसको बेसिकली इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए कुछ और भी चेंजेस हुए हैं जिसको हम पढ़ेंगे अभी. से आया हुआ है क्वेश्चन मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे लास्ट ईयर. यस सर. ओके, सो आज जो क्या, हालांकि स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज़ वी विल सी. ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और सोचो आप ये क्यों आया क्वेश्चन. उसी टाइम नंदन नीलकणी कमेटी के बारे में ये बेसिकली टर्म ऑफ रेफरेंस में दिया हुआ था उनकी कि एमडीआर में बेसिकली आपको चेंजेस जो भी ये सजेस्ट करने हैं. that time it was very much in news, MDR, and still it is in news. So currently merchants pay a merchant discount rate. So merchant discount rate होता क्या है बेसिकली, जैसे कि दो लोगों के बीच में डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं. देखो एक मर्चेंट है, जैसे शॉप ले लेते हैं हम लोग, शॉप है मान लो, उसके पास वो जो डेबिट कार्ड स्क्रैच करने वाली जो मशीन होती है उसको POS बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल. ओके, सो जो डेबिट कार्ड स्क्रैच करने वाली जो मशीन होती है, आपने डेबिट कार्ड स्क्रैच किया, ओके, तो आप पेमेंट यदि आप कार्ड से कर रहे हो तो वो फ्री में पेमेंट नहीं हो रही है, आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, कस्टमर को कोई चार्ज नहीं पड़ता. बट यस, जो शॉपकीपर होता है, ओके, वो जितना उसको उसने कलेक्ट किया, जितने मनी उसने कलेक्ट की, उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, और वो जाता कहाँ से, वो जाता कहाँ पर है, वो अमाउंट, दैट अमाउंट गोज टू दैट बैंक. ओके, जहाँ जिसका वो यूज हुआ, जिस बैंक का, उस बैंक को बेसिकली वो बैंक अर्न करता है. ओके, जो बैंक वो इश्यू कर रहा है POS मशीन, तो वो बैंक बेसिकली उसको चार्जेस काटता रहता है हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर, वो मनी कटती है. अब आप देखो एक चीज, देखो आप लोग इसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते क्यों, ये भी समझ लो आप लोग. तो एक तरह से देखो, यूजर्स को तो कोई डिस्काउंट नहीं मिला, यूजर्स ने तो जितना MRP देख के उतना पे कर दिए, ओके, मर्चेंट को, तो उसने पैसा यूजर्स से तो लिया नहीं मर्चेंट ने. ओके, बट उसने, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट था, मान लो 100 रुपए की चीज है, तो उसने मान लो 1 रुपया या 2 रुपए या 3 रुपए उस बैंक को दे दिए, तो एक तरह से उसको 97 या 98 रुपए ही मिले हैं. ओके, 2 रुपए का उसको नुकसान हो गया. एक तरह से उसने उस प्रोडक्ट में 2 रुपए का डिस्काउंट कर दिया, इसको ऐसा भी मान सकते हैं. ओके, क्योंकि उसके लिए तो डिस्काउंट ही हो गया. ओके, जो भी MRP प्राइस था उसके ऊपर 2 रुपए को कम मिले हैं, दैट मींस ही मेक ए डिस्काउंट. लेकिन वो डिस्काउंट गया किसके पास है, यूजर्स के पास नहीं गया. दैट discount received by the bank as a fee to make this kind of transactions. So I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा, that is what is the meaning of this merchant discount rate. Okay, so currently merchants pay a merchant discount rate to banks. और ये banks merchants कोई भी हो सकते हैं, जो भी जब पेट्रोल पंप पे कोई मशीन यूज कर रहा है और कहीं पर भी कोई merchant यदि डिजिटल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर रहा है, then that can be merchant. So currently merchants pay a merchant discount rate to banks for accepting payments from customers through debit or credit cards. The committee recommended that MDR should be subsidized by the government, and interchange fee on card payment should be reduced by 15 basis points to incentivize digital payments. So what they are saying, this committee said, MD का प्रॉब्लम क्या है MDR के साथ, यदि मर्चेंट्स का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, मर्चेंट्स को प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो मर्चेंट्स की क्या टेंडेंसी होगी, दैट इट विल एक्सेप्ट कैश ट्रांजैक्शंस, इट विल मूव टुवर्ड्स
कैश ट्रांजैक्शंस, बिकॉज कैश ट्रांजैक्शंस को डिस्काउंट पे नहीं करना पड़ रहा। यदि चीज 100 रुपीज की है तो उसको 100 रुपीज ही मिलेंगे कैश में, and that is why this MDR favors the cash transactions, okay, because it's just kind of fee or this fine on the merchants who are using the digital payments, okay, and that is why this committee said कि इस MDR को कम किया जाए और गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करे, मतलब जिसका जो बर्डन है, ऑब्वियसली बैंक्स भी फ्री में सर्विस नहीं दे सकते, तो जो उसका बर्डन है वो गवर्नमेंट खुद बियर करे, rather than the burden goes to the merchants। इसमें एक और लूप होल है, मैं आपको बताया तो मे भी इस बार मेंस में क्वेश्चन आ जाए एमडीआर के ऊपर। इसमें एक और लूप होल होता है, कई बार क्या होता है कि मर्चेंट्स जैसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एमआरपी के ऊपर ज्यादा नहीं लगा सकता आपके ऊपर। कई बार कुछ चीज लूज में भी होती है, ओके, जैसे कि मान लो किराना स्टोर है, फर्ज करो एंड कोई शुगर परचेज करो, तो मान लो शुगर 25 रुपीज के दूसरे 26 या 27 रुपीज, उसको पहले से 1 रुपया 2 रुपये बढ़ा के उसको लगा दिया प्राइस, ताकि जो एमडीआर वो पे करे डिजिटल ट्रांजैक्शन से तो वो कवर हो जाए, ओके। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, या फिर एक ये भी होता है कि मान लो फर्ज करो प्रोडक्ट कोई एमआरपी के ऊपर भी है और उसके ऊपर वो डिस्काउंट दे सकता था वो पर्सन उस कस्टमर को, ओके, तभी वो उसको कस्टमर को डिस्काउंट नहीं देगा, ओके। So that is why sometimes it also put burdens on the customer. Otherwise, legally, the burden is to bear with by merchants. Okay. So सारी problems हैं MDR के साथ. So what this committee recommended that this MDR should be reduced, ताकि merchants के ऊपर burden कम आए और वो लोग इसको adopt कर सके MDR को. Okay. It also recommended that RBI set up a committee to review the MDR on a periodic basis. उन्होंने ये भी बोला कि कमेटी को सेटअप किया जाए जो कि आरबीआई सेटअप करेगा, ताकि एमडीआर को वापस रिव्यू किया जाए, इसके रेट होनी क्या चाहिए, एग्जैक्ट रेट क्या होनी चाहिए एमडीआर की। सो फॉर दैट एंड करंटली ये रिसेंट न्यूज है, जनवरी 2020 की न्यूज है, इसलिए याद रखना। तो अभी क्या हुआ कि जब ये एमडीआर के ऊपर ये रिकमेंडेशंस दी नंदन नीलेकानी रिपोर्ट को काफी सीरियसली लेती है गवर्नमेंट, राइट, बिकॉज नंदन नीलेकानी ऑलरेडी प्रूवन with the implementation of the UIDAI scheme or Aadhaar card scheme। तो जो भी ये कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट सारी रिकमेंडेशन को सीरियसली ले रही है, ओके। सो गवर्नमेंट ने क्या न्यूज आ रही थी, जिसको पढ़ा होगा आप लोगों ने, आर्टिकल्स भी आए थे, दैट गवर्नमेंट इज थिंकिंग फॉर दी टू मेक दिस एमडीआर एज 0, ओके। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम इसको एमडीआर को खत्म नहीं कर देंगे, 0 कर देंगे, बैंक्स को ये सर्विस प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, ओके, विद फ्री ऑफ चार्ज, एंड गवर्नमेंट खुद ही बर्डन नहीं लेगी, सब्सिडाइज नहीं करेगी। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर इन न्यूज। उससे फिर क्या हुआ, जितने भी जो पेमेंट बैंक्स थे, चाहे वो पेटीएम है, चाहे एयरटेल मनी है, चाहे गूगल पे है या व्हाटएवर, जितने भी पेमेंट सिस्टम्स थे ये सब के सब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पुट करने लगे। तो हमने प्रेशर ग्रुप ऑलरेडी पढ़ा है, टॉपिक पॉलिटी का। सो ऑल दिस थिंग्स आर इंटररिलेटेड। सो ये सब ग्रुप्स प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट करने लगे, सारे पेमेंट बैंक्स गवर्नमेंट को प्रेशर डालने लगे कि आप ऐसा मत करो, ओके, अदरवाइज वी विल बी इन लॉस, ओके। सो गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड नॉट टू इंप्लीमेंट दिस रिकमेंडेशंस इन वन गो, एक बार में इसको इंप्लीमेंट करने गवर्नमेंट नहीं सोचा। तो गवर्नमेंट ने किया क्या, दैट गवर्नमेंट चोज 2 प्लेटफॉर्म्स on which it has made the 0 MDR। अभी सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है ऐसे जहां पर MDR 0 है, जहां पर यदि आप जिसके यूज करके यदि आप पेमेंट करते हो then there won't be any MDR, merchant discount rate। So these 2 platforms are RuPay cards and UPI platforms, and ये 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर 0 MDR जनवरी 2020 में इंप्लीमेंट हुई है। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस ईयर प्रीलिम एग्जाम, ओके। तो याद रखना कि RuPay कार्ड एंड UPI प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 0 MDR होता है। एनीबॉडी, व्हाट इज UPI? किसी को पता है व्हाट इज UPI? हम लोग पेमेंट करते हैं पेटीएम से भी, लोग बहुत सारे लोग पेमेंट करते होंगे, भीम ऐप का भी बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा, ओके। आजकल काफी आता रहता है कि यूपीआई से कनेक्ट करो, इनफैक्ट फोन पे की जो टीवी में ऐड आती है उसमें भी बोलते हैं कि डायरेक्ट यूपीआई का यूज करो व्हाइल यू आर यूजिंग द वॉलेट सिस्टम। सो व्हाट इज दिस UPI?
ठीक है, तो इसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में व्हाट इज यूपीआई. ओके, समझेंगे इसको. So government is also want to make zero MDR for other platforms, but there is a big opposition from payment banks as they are fearing loss of revenue on such a waiver. यदि ये हटा दिए तो waiver मतलब हटाना, waiver यदि ये हटा दिए तो MDR तो उनको revenue को loss लगेगा, and that is why they opposed. The RBI, in order to protect consumers, has ensured that merchants don't pass on MDR charges to their customers. तो आरबीआई ने इंश्योर कर दिया कस्टमर्स, कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को कि आपके ऊपर इसका बर्डन नहीं आएगा एमडीआर का. बट इट हैज नॉट इंश्योर्ड, आरबीआई ने इंश्योर नहीं किया मर्चेंट्स को कि आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा. दैट मींस स्टिल आवर मर्चेंट्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ एमडीआर. इट आल्सो नोटेड दैट हाई वैल्यू पेमेंट सिस्टम्स आर करंटली नॉट अवेलेबल राउंड द क्लॉक, व्हिच शुड बी एड्रेस्ड. एक और प्रॉब्लम इन्होंने बताई, because हमने जो सेकंड रिकमेंडेशन पढ़ रहे हैं, that is we are reading about the recommendation on the payment mechanism. पेमेंट मैकेनिज्म मतलब किस तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं, उनमें कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है. तो पेमेंट मैकेनिज्म मतलब एक तो प्रॉब्लम आएगी ये जो हम लोग मशीन्स यूज करते हैं पीओएस, और उसके ऊपर जो एमडीआर लग रहा था उसके ऊपर उन्होंने बोला. ओके, इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो भी हाई वैल्यू पेमेंट सिस्टम है, इसका मतलब यदि मान लो किसी को 10 लाख का या 20 लाख का ट्रांजैक्शन करना है या 1 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शंस करने हैं, दीज आर नॉट राउंड द क्लॉक. वो ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो. तो उसके लिए फिर वो शिफ्ट्स में होता है. ओके, ट्रांजैक्शंस यदि मे बी आप लोगों ने यूज किया होंगे ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कभी किया हो, तो यूजुअली हम लोग 3 तरह के ट्रांजैक्शन यूज करते हैं हमारी कंट्री. वन इज आईएमपीएस, अदर इज नेफ्ट एंड अदर इज आरटीजीएस. ये 3 तरह के हम ट्रांजैक्शन यूज करते हैं. ये किसने किया हो ट्रांजैक्शन, तीनों में क्या डिफरेंस होता है? And these are the things which comes from the practical reality. Okay, ये सब theoretical चीजें नहीं है, ये practical reality हम लोग यूज भी करते हैं सब चीजें. So I do not know whether you are using or not these kind of things. Okay, so इसको फटाफट से समझ लो. आईएमपीएस, नेफ्ट और आरटीजीएस तीनों ही पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के सिस्टम है. ओके, तीनों के तीनों हम लोग यूज करते हैं. कभी किसी के पास ऑनलाइन बैंकिंग हो तो कभी ट्रांजैक्शन में आप पे रजिस्टर करते हो. ओके, अकाउंट पे रजिस्टर करते हो जिसको मेरे को ट्रांसफर करना है. उसको पे रजिस्टर करने के बाद आप उसमें देखना कि उसको पेमेंट करते हो, 3 ऑप्शन आएंगे. आप आईएमपीएस से पेमेंट करना चाह रहे हो या नेफ्ट से या आरटीजीएस. तो आईएमपीएस से आप मैक्सिमम 50,000 तक की पेमेंट कर सकते हो. ओके, एंड दैट इज ए 24 आवर पेमेंट सिस्टम. इसका मतलब 24 घंटे में जब भी आप करोगे हाथों हाथ आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे उस पर्सन को. तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें वो कुछ टाइम लेता है, डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक. ओके, कितना टाइम वो लेते हैं. सो जैसे कि अराउंड 2 घंटे के आसपास वो टाइम लेता है पे को रजिस्टर करने में. तो जैसे पे रजिस्टर होता है उसके बाद आप जब भी पेमेंट उसको करोगे उस पर्सन को, तब हाथों पेमेंट हो जाएगी आईएमपीएस में. सो दैट इज कॉल्ड अराउंड द क्लॉक पेमेंट सिस्टम. ओके, तो करंटली इंडिया में कौन सा अराउंड द क्लॉक पेमेंट सिस्टम है? दैट इज आईएमपीएस. अभी आप बोलोगे यूपीआई, यूपीआई इज आल्सो अराउंड द क्लॉक पेमेंट सिस्टम. दिस यूपीआई और कार्ड पेमेंट सिस्टम. So these payment system also follows the IMPS only. ये भी IMPS के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं. तो जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं पेमेंट सिस्टम का, वो लोग IMPS ही यूज करते हैं. बीइंग यूपीआई यूज करो या रुपे कार्ड यूज करो. सो राउंड द क्लॉक पेमेंट सिस्टम यूज करेंगे हमारे पास IMPS सिस्टम है. एंड नेफ्ट, नेफ्ट में बेसिकली आप वो लोग जैसे कि एक दिन में 5 या 6 बार उसको क्लियर करते हैं पेमेंट सिस्टम. मान लो आपने एक पेमेंट नेफ्ट में बेसिकली आप मैक्सिमम 2 लाख तक की पेमेंट कर सकते हो. यदि आपको 50,000 से लेकर 2 लाख तक की पेमेंट करनी है तब आप नेफ्ट का यूज करते हैं. ओके, 50,000 तक आईएमपीएस यूज करते हैं. 2 लाख तक की पेमेंट यूज करते हैं हम लोग यदि, देन यू यूज नेफ्ट. और नेफ्ट में क्या होता है कि वो लोग ऐसे कि 24 घंटे में 5 या 6 बार ही वो लोग ओपन करते हैं, उसको क्लियर करते हैं. जैसे कि मान लो आपने पेमेंट की, तो आपके हाथों पेमेंट नहीं गई वहां पर, दैट विल बी ऑन बैच सिस्टम. यहाँ पर बैच सिस्टम होता है नेफ्ट में. ओके, तो वो लोग क्या करेंगे कि आपकी पेमेंट को वेट करेंगे. जैसे कि उन्होंने 10 बजे क्लियर करना है पेमेंट या 12 बजे क्लियर करना है, 2 घंटे का गैप है, तो 12 बजे तक जितने भी पेमेंट्स हुई हैं नेफ्ट में तो उसको क्लियर करेंगे. दिस पेमेंट्स आर क्लियर्ड ऑन बैच सिस्टम. और आरटीजीएस में भी 2 लाख से ऊपर पेमेंट यदि आपने करनी है दैट विल बी बाय द आरटीजीएस सिस्टम.
So these are the payment system, different payment systems. So this round the clock service is not available for the high value payment system. Okay, and that is the concern of this particular committee. So to improve the acceptance of digital payments, the committee recommended removal of import duties from point of sale devices. Again हम second जो recommendations थी उसी के ऊपर पढ़ रहे हैं, payment mechanism के ऊपर जो भी उन्होंने reforms suggest किए हैं. Third is the POS devices. अब ये जो POS devices किसको बोलते हैं, point of sale devices किसको बोलते हैं, जो मैंने बताया जो machines होती हैं, जो credit card या debit card scratch करने जो machines होती हैं, उनको basically point of sale devices बोलते हैं. Okay, so these point of sale devices mostly are imported devices. तो जगह पर ये इंडिया में नहीं बनती है, हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं. ओके, so as these devices are imported devices, so this committee recommended the removal of import duties on these devices, because यदि import duty लगेंगी इस devices तो ये devices महंगी मिलेंगी. So obviously merchants को again ये सर्विस devices महंगी मिलेंगी. बट यदि हम चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स इंडिया डिजिटल इंडिया बने, तब हमें ये पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस का प्राइसेस कम करने पड़ेंगे. So for that, the committee, the Nandan Nilekani committee suggested the removal of import duty from the point of sale devices and waiving GST on immediate payment service for transaction charges up to ₹5,000. इसके अलावा उन्होंने क्या बोला, अब जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें जीएसटी चार्ज लगते हैं. ओके, एक इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है that even without registering the pay, ओके, यदि आप ये सब वही समझ सकते हैं, इसने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को पेमेंट की हो कभी, ओके, ऑनलाइन बैंकिंग यूज की, तो ये कोई इमीडिएट पेमेंट या जो भी कोई मोबाइल कोई पे जो मोबाइल बैंकिंग होती है उसको भी यूज किया हो आप लोगों ने, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है कि 5,000 रुपए तक का यदि आपको पेमेंट करनी है तो आप इमीडिएटली कर सकते हो. ओके, सो बट बिकॉज यू आर मेकिंग ए इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस पे कर रहे हो, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज भी लगाते हैं. इनफैक्ट जो हम लोग आईएमपीएस और वो जो सब यूज करते हैं नेफ्ट और आरटीजीएस के ऊपर भी जीएसटी चार्जेस लगते हैं ट्रांजैक्शन के ऊपर. ओके, सो इफ वी आर मेकिंग द इमीडिएट पेमेंट सर्विस up to ₹5,000, then the committee suggested that there should not be any GST. तो 5,000 रुपए तक का कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए. That is recommended by this committee. So all these things are suggested to make India a digital economy. Okay. Further, it recommended that use of high volume, low cost users cards such as the National Common Mobility Card be permitted at POS devices. तो भी एक बात याद रखना, जो भी हम लोग ये जो कमेटी की रिकमेंडेशंस पढ़ रहे हैं नंदन नीलेकानी, तो ये सिर्फ हम लोग रिकमेंडेशंस नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा इस कमेटी के अंदर जो भी टर्म्स आएंगे, जैसे एमडीआर आ गया या ये अभी जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आ गया, इन सबको भी यहीं पर डिटेल में पढ़ लेंगे. ओके, ताकि इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो डेफिनेटली एक तरह से पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन के पूरे टॉपिक को हम लोग एक साथ कर रहे हैं आज. So this is also important for your mains examination. तो मेंस एग्जामिनेशन के नोट्स ये आपको ये बेसिकली संभाल के रखने होंगे उस टाइम आपको रिवाइज करने के लिए. सो इस कमेटी ने ये भी बोला कि जैसे कि आप लोग मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड या रुपे कार्ड को तो हम लोग अलाउ करते ही डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए, इसके अलावा कुछ और भी कार्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया, इस कमेटी ने एग्जांपल दिया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, अब उसको परमिट नहीं किया था पीओएस डिवाइसेस में. अब ये होता क्या है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये लॉन्च किया गया था मार्च 2019 में. दिस कार्ड इज एन इंटरऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड कंसीव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ये भी रखने की कौन सी मिनिस्ट्री ने इस कार्ड को लॉन्च किया, बिकॉज ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ था. डेफिनेटली दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक तरह से डेबिट कार्ड की तरह ही है. ओके, तो इसमें होता क्या है कि जो खासकर जो लोग शहरों में रहते हैं, जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, तो उनको प्रॉब्लम क्या आती थी, दैट इफ दे आर ट्रैवलिंग फॉर मेट्रो देन दे वुड हैव मेट्रो कार्ड. इफ दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द बसेस, दिस डीटीआरसी बसेस, देन दे वुड हैव बस कार्ड. ओके, if the person is moving from its private vehicle, और द टोल टैक्स उसको यदि वहां पर उसको बेसिकली
टोल टैक्स पे करना होता था, उसके लिए एक अलग से टोल टैक्स वाला एक कार्ड इशू कर देता था. So there were so many cards. Okay, so there were so many cards in these cities. That is why the government issued only one card, that is National Common Mobility Card. ये यदि आपके पास कार्ड है, कहीं पर भी आप ट्रैवल करो, इस कार्ड की मदद से आप लोग कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. So एक इनिशिएटिव लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था ये कार्ड, बिकॉज देख से ऐसा लगता है बिकॉज इट्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, तो वो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया होगा. But a year later, this card is released by the Ministry of Housing and Urban Affairs. It was launched on 4th March 2019. The transport card enables the user to pay for travel, toll duties, toll tax, retail shopping, and withdraw money. तो इस कमिटी ने क्या बोला कि ये जो कार्ड है, इस तरह के जो हाई वॉल्यूम लो कॉस्ट यूजेस कार्ड्स होते हैं, इनको परमिट किया जाए कि वो किसी भी पीओएस डिवाइसेस के ऊपर काम कर सके. Okay, so this card should be made equivalent to the other debit cards. That was the recommendation of this committee. It enabled through RuPay card. ये RuPay card ये basically RuPay card issue किया जाता है as a National Common Mobility Card. उसके लिए RuPay card issue किया जाता है from partnered banks, SBI, Bank of India, PNB और any other bank. इसके अलावा अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन में अभी इसी टॉपिक में, अभी तो आपको समझ में आ गया नेशनल मोबिलिटी कार्ड क्या है, कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है. अभी हम समझेंगे कि व्हाट इज दिस रूपे एंड भीम यूपीआई ऐप, बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते रहते हैं. भीम यूपीआई ऐप के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे, इनफैक्ट हम क्लास में कर भी चुके हैं. क्या पढ़ा था हम लोगों ने भीम यूपीआई के बारे में नोट्स में, इकोनॉमिक्स में? यस, बिकॉज एट दैट टाइम आई सेड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर. भीम यूपीआई अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? Anybody remembers anything? कोई नया वर्जन आया था भीम? यस, कोई नया वर्जन आया था भीम का 2.0 3.0? यस, याद आया होगा आप लोगों को कुछ? सो एक चीज, यस 2.0 था सर. 2.0 था, उसमें क्या था नया, क्या था उसमें? सर एक तो 3 स्टेप ऑथेंटिकेशन कर दिया था 2 स्टेप से. ओके, व्हाट एल्स? और एक सर कोई नए प्लेटफॉर्म ऐड किए थे पेमेंट के. आई थिंक क्लियर नहीं है आप लोगों को पूरी बात इसकी. एक तो लैंग्वेजेस ऐड की थी, मल्टीपल लैंग्वेजेस कर दिया था. आई थिंक अभी 22 लैंग्वेजेस हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उनमें से 20 लैंग्वेज इसमें अभी कर दी गई हैं. 20 लैंग्वेज में ये प्लेटफॉर्म बना दिए गए. एंड देयर वर अदर थिंग्स आल्सो भीम 2.0 में जो मैंने आपको लिखवाया. सो ये सब चीजें प्लीज आप रिवाइज करो. ये तो मैं तो हैरान हूँ कि ये तो 31 मई से भी एग्जाम लेट हो रहा है. यदि एग्जाम लेट ना हो रहा था तो आपको रिविजन बहुत कम हुआ है आप लोगों का. इसको प्लीज आप रिवाइज करो चीजों को. और ये संडे टेस्ट आप लोगों को कल क्लास दी है, एंड आई वांट टू योर परफॉर्मेंस इन हिस्ट्री टेस्ट. तो ये 2 दिन आप ढंग से हिस्ट्री पढ़ लेना. So this RuPay and Bheem UPI app both started by National Payment Corporation of India. तो ये दोनों की दोनों चीजें RuPay कार्ड बेसिकली एक डेबिट कार्ड है. तो पहले हम जैसे हमने डिस्कस भी कर चुके क्लास में, ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में बात कर चुके हैं इसके ऊपर. तो बेसिकली जैसे कि जब पहले यूज करते थे इंडिया में 3 कंपनी यूज करते थे हम लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में, मेस्ट्रो, मास्टर एंड वीसा. ये 3 हम लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते थे 3 कंपनीज के. और ये तीनों फॉरेन कंपनीज थी. ओके, तो हमारे आरबीआई was desperately wanted that we should have a domestic card, RuPay, I mean any kind of domestic card. Okay, and then government took an initiative to launch this RuPay card. Okay, RuPay is a domestic card, that means ये हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है. Okay, and इसको प्रोड्यूस किसने किया है? Who manufactured this RuPay card is National Payment Corporation of India, and it's a government undertaking, government enterprises. And the same government company also issued the Bheem UPI app. Okay, अब थोड़ा सा RuPay कार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं. इसका RuPay कार्ड was issued on 26th March 2012. तो सबसे पहली बार जब RuPay कार्ड आया था that was in 2012. It's a domestic कार्ड, हमारे खुद का बनाया हुआ कार्ड, इंडिजिनस कार्ड.
It was created to fulfill the RBI vision to have a domestic, open, and multilateral system of payments. Cost per transaction is low with RuPay card compared to foreign card schemes. अब cost क्यों कम पड़ती है? Because हमारे इंडिया का है, जो foreign card जो कंपनीज है वो ज्यादा कॉस्ट करती है, बैंक के ऊपर ज्यादा चार्जेस डालते हैं, बैंक हमारे ऊपर ज्यादा चार्जेस डालते हैं. ओके, अभी आप देखो जब भी आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं, कोई नया अकाउंट किसी ट्राई किया तो नया अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपको वो वाले रुपए कार्ड आपको वो देते हैं डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट. वो बोलते हैं रुपए कार्ड लेने तो आपको हाथ मिल जाएगा. और यदि आप कहते हैं नहीं रुपए कार्ड नहीं कुछ और चाहिए, वीजा या मास्टर कार्ड, तो वो बोलते हैं ठीक है थोड़ा वेट करो, आपको कुछ टाइम नहीं मिलेगा, आपको इसलिए एप्लीकेशन देनी है. दैट मींस गवर्नमेंट आल्सो वांटेड टू प्रमोट दिस रुपए कार्ड. ओके, और रुपए कार्ड इसलिए भी यूज करना चाहिए यदि आप डोमेस्टिकली यूज कर रहे हो, इफ यू आर नॉट मूविंग इंटरनेशनली. रुपए कार्ड इसलिए यूज करना चाहिए बिकॉज उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, बिकॉज आप जब साल भर की स्टेटमेंट देखते हो अपने बैंक अकाउंट की फाइनल में, तो आप देखोगे कि रुपए कार्ड सॉरी देयर आर दिस कार्ड चार्जेस. ओके, साल भर में आपको कार्ड चार्जेस लगते हैं, तो दिस कार्ड चार्जेस आर वेरी लेस ऑन दिस रुपए कार्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें भी इसमें कॉस्ट कम लगता है रुपए कार्ड. एंड सेकंड प्लेटफॉर्म दैट वाज रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट वाज द भीम. एंड इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी. And it is an Indian mobile payment app developed by NPCI, same government company, based on the Unified Payment Interface. This is the full form of the UPI. अब मैंने आपको बताया था, पूछा था थोड़ी देर पहले कि UPI होता क्या है, तो वो समझ लेते हैं. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. तो इसकी बड़ी एक भीम ऐप क्यों रिलीज हुई, कैसे रिलीज हुई, इसके लिए हमको डिमोनेटाइजेशन के ऊपर जाना पड़ेगा. सो ऑन 8 नवंबर 2016, आई होप कि मैं सही डेट बता रहा हूँ, 8 नवंबर 2016 ये वो दिन था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था. व्हेन एट दिस नाइट 8 o'clock प्राइम मिनिस्टर सेड दैट दिस हाई वैल्यूड करेंसी इज नो मोर दिस लीगल टेंडर. ओके, तब उसके बाद क्या हुआ था कि एकदम से फाइनेंशियल क्रंच आ गया था, एक तरह से एक लिक्विडिटी मार्केट में प्रेशर आ गया था, प्रॉब्लम आ गई थी लिक्विडिटी की, कैश प्रॉब्लम आने आ गई थी एकदम से कंट्री में. ओके, एंड एट दैट टाइम देयर वाज नो प्लेटफॉर्म टू मेक ए डिजिटल ट्रांजैक्शन. एक तरह से मोबाइल का कोई ऐसे गवर्नमेंट का कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्लेटफॉर्म था नहीं उस टाइम. एंड देन अवर प्राइम मिनिस्टर, एंड उस टाइम इंडिया में ले देखिए कि कंपनी थी पेटीएम. ओके, which was in running stage. ओके, जिससे कुछ एक गुड नंबर ऑफ जिसके पास यूजर्स थे. देन आवर प्राइम मिनिस्टर वाज फोर्स्ड टू एडवर्टाइज दिस पेटीएम. ओके, तो उनको जो पॉलिटिकल रैलीज में उनको एडवर्टाइज करना पड़ा पेटीएम को, इवन क्योंकि कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा किसी प्राइवेट कंपनी को ऐसे प्रमोट नहीं करता है. ओके, बट उनको ऐसा बोलना पड़ा कि आप पेटीएम को यूज कर सकते हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बिकॉज गवर्नमेंट के पास खुद का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था. एंड इट वाज ए वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन. And at that time, our Prime Minister Modi said that yes, we need to create our own payment system. And government को खुद को अपना payment system बनाना पड़ेगा ताकि लोग मोबाइल टू मोबाइल पेमेंट कर सके. Okay, and that is why this Bheem app was created. So देखो अब 30 दिसंबर 2016 को ये लॉन्च की गई थी, बहुत कम टाइम में लॉन्च की गई थी, जल्दबाजी में. ओके, बिकॉज हमारे पास कोई पेमेंट सिस्टम नहीं था, हमारे पास कैश भी नहीं था, और इनफैक्ट कोई भी तैयारी नहीं थी हमारी, ना तो हमने ऐप तैयार की इस तरह की पहले, और ना ही हमने ये इंश्योर किया कि नई जो करेंसी है उसको भी आने में टाइम लग गया. ओके, और फिर जो आएगी करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी टाइम लगेगा, जो भी नए 2000 या 500 के नोट्स आए तो डिस्ट्रीब्यूट करने में टाइम लगा. सो इट टुक टाइम. एंड व्हाई दिस ऐप नेम्ड एज भीम, बिकॉज इट वाज नेम्ड आफ्टर B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar को भीमराव अम्बेडकर इनका पूरा नाम. सो इस तरह से इनका नाम, इस ऐप का नाम भीम इसलिए रखा गया, एट द रिमेम्बरेंस ऑफ B.R. Ambedkar. It is intended to facilitate e-payments directly through banks as part of 2016 Indian banknote demonetization and drive towards cashless transactions. और यूपीआई का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का मतलब क्या होता है. जनरली जो पहले हम जो पेटीएम में जो वॉलेट सिस्टम है अभी भी यूज करते हैं, पेटीएम वॉलेट सिस्टम, उसमें बेसिकली क्या होता है, जितने भी अदर पेमेंट वॉलेट सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है कि आप लोग पहले वॉलेट में डालते हो पैसे एंड देन फिर वॉलेट को यूज करते हो, और फिर वॉलेट में जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर दोबारा करंट वॉलेट में डालते हो, फिर उसको हम लोग यूज करते हैं. तो वॉलेट में पैसे ऐसे यूज होते हैं, और उसमें नुकसान क्या है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रही थी 4% की, सेविंग अकाउंट पे 4% का आपको ब्याज मिलता है. तो वो अभी इस पे वॉलेट सिस्टम पे आपको ब्याज नहीं दे रहा पेटीएम.
यदि आपके पास वॉलेट में कोई मनी पड़ी है, करेंसी पड़ी है, ठीक है। सो दैट वाज ए इशू। एंड उसके अलावा ये सिक्योर्ड भी नहीं है। फर्ज करो कि किसी ने पेटीएम डाल लिया और किसी ने आपका एक तरह से ओटीपी एक्सेस कर लिया, तो आप इजीली वो आपका पर्सन आपका पेटीएम को वॉलेट को यूज कर लेगा। या किसी के आपका मोबाइल लग गया, उसने आपका पेटीएम खोला और फटाफट से उसने ट्रांसफर कर लिया अपना मोबाइल में। Okay, so that was the issue because it was not a secured system and you are not getting any return if you have any money with the Paytm wallets. तो यूपीआई में क्या होता है, यूपीआई सिस्टम में क्या होता है, that your own bank account act as a wallet. Okay, इसमें क्या होता है यूपीआई पेमेंट सिस्टम में, that app link your bank account. तो एक तरह से आप जब यूपीआई को यूज करोगे तो आपको वो जितने भी आपके मोबाइल नंबर और आधार आईडी को एक्सेस करके वो जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उस मोबाइल नंबर को अटैच्ड जितने भी अकाउंट्स हैं उस आपके आधार आईडी से जितने भी अटैच्ड आपके अकाउंट्स हैं वो सारे अकाउंट्स दिखा देगा। ओके, एंड उसके बाद वो आप हर अकाउंट को आप लिंक कर लोगे, ओके, उस यूपीआई ऐप से। उसके बाद यदि मान लो खर्च आपके अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हैं और यदि आपको 20 रुपये की पेमेंट करनी है, 20 रुपये की पेमेंट करनी है, तो आपको कोई अकाउंट पेमेंट रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आपका जो आपका बैंक अकाउंट है वो भी वॉलेट की तरह यूज कर सकते हो। आप उसको सेंड मनी इजीली कर सकते हो, दूसरे पर्सन का नंबर डाल के यूपीआई आईडी डाल के आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, मोबाइल नंबर डाल के उसका ट्रांसफर कर सकते हो, आधार आईडी का यूज करके ट्रांसफर कर सकते हो, उसका अकाउंट नंबर का यूज करके और आईएफएससी कोड करके भी ट्रांसफर कर सकते हो यूपीआई। तो इस तरह से यूनिफाइड प्लेटफॉर्म सिस्टम है, ओके, पेमेंट सिस्टम है, ओके। And in this इसमें क्या आपको एडवांटेज क्या है आपको बेसिकली, दैट यू विल गेट रिटर्न बिकॉज आपका पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, यू आर नॉट ट्रांसफरिंग। आपको बार बार ये जो ट्रांसफर करने वाली जो प्रॉब्लम थी आपकी सॉर्ट आउट हो गई, आपको बार वॉलेट में डालने की जरूरत नहीं है पैसे, आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी वॉलेट की तरह काम कर रहा है। सेकंड थिंग दैट यू आर गेटिंग इंटरेस्ट आल्सो बिकॉज आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं, दैट यू आर गेटिंग इंटरेस्ट आल्सो ऑन योर सेविंग। सो दिस इज द यूपीआई पेमेंट सिस्टम। और अभी क्या होता है, जितने भी पेमेंट बैंक्स गवर्नमेंट ने जिनको अलाउ कर दिया पेमेंट बैंक्स को कि जैसे कि पेटीएम इज ए पेमेंट बैंक, एयरटेल मनी इज ए पेमेंट बैंक, अदर आल्सो, ओके, जिनको गवर्नमेंट ने पेमेंट बैंक भी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स में इनफैक्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं इसके ऊपर प्रीलिम में, व्हाट इज पेमेंट सिस्टम, ओके। तो जितने पेमेंट बैंक सिस्टम है बेसिकली अब ये इन लोगों ने भी इनके पास इनके अंदर भी यूपीआई का एक ऑप्शन आने लग गया आजकल। पेटीएम आप यूज करोगे तो उसमें भी यूपीआई में अटैच करने के लिए बोलता है आप लोगों को, ओके, because now people are more comfortable with this UPI payment system because it has more advantage than any other. देखो आप सिर्फ फोन पे तो सिर्फ इसलिए ऐड करके वो हिट हो गया because it is adding with the making a attachment with the UPI payment system कि हम लोग UPI का यूज करते हैं, ओके। सो कितना पेमेंट बैंक का भी गवर्नमेंट ने आई मीन परमिशन दे दी है, कितने पेमेंट बैंक्स हैं? मैंने आप लोगों को उस टाइम होमवर्क भी दिया था जब लोग पढ़ रहे थे पेमेंट बैंक सब पैक करके आना, कितने पेमेंट बैंक को परमिशन मिल गई है, कौन कौन से पेमेंट बैंक हैं इंडिया में? यस, एनीबॉडी रिमेंबर्स इफ एनीथिंग? तो आई थिंक आपने उस टाइम होमवर्क किया होगा, नहीं किया तो डेफिनेटली इसको दोबारा देख लेना कि कितने कितने पेमेंट बैंक्स को अभी परमिशन मिल गई है। एक चीज और बताओ आप लोग कि पेमेंट बैंक और बैंक्स में क्या डिफरेंस होता है, दैट वी हैव रेड इन क्लास। कन्वेंशनल बैंक्स और पेमेंट बैंक्स में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेमेंट बैंक्स? Payment banks don't have deposit facilities like the usual banks do. थोड़ा सा इसको सही नहीं बोला आपने कि इसमें डिपॉजिट फैसिलिटीज नहीं, इनफैक्ट लैंडिंग फैसिलिटीज। सो पेमेंट बैंक्स डू नॉट हैव लैंडिंग फैसिलिटी। दीस पेमेंट बैंक्स आर ओनली मेंट फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस, ओके। ये लैंड नहीं करते हैं मनी, ब्याज पे या उधार पे नहीं दे सकते मनी। ये सिर्फ जो भी कमाई करते हैं, जो भी अर्निंग करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस। जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसके ऊपर ही ये पेमेंट बैंक्स बेसिकली अर्न करते हैं, ओके, जो भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेंगे फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शंस। तो ये आपको याद रखना है। ये सेविंग अकाउंट आपका बना सकते हैं, वो डिपॉजिट आपको मनी करवा सकते हैं, जैसे कि जिस पर पेटीएम एक पेमेंट बैंक है, बट पेटीएम में आप दो ऑप्शन आते हैं, एक तो पेटीएम वॉलेट आता है, एक आता है पेटीएम पेमेंट बैंक। आप ध्यान से देखना कभी ऐप खोल के, तो आप अपने वॉलेट से पेटीएम के पेमेंट बैंक में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और जैसे ही आपने पेटीएम वॉलेट से पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया, then you will start earning your interest, okay।
तो वो ब्याज आपको पे करेंगे, बट दिस पेमेंट बैंक्स कैन नॉट लेंड मनी। ओके, कभी तो शायद बात चल रही थी पेमेंट बैंक्स अपना एटीएम भी खोल सकते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज वन न्यूज। और बट यस दे कैन नॉट लेंड, ये बेसिक डिफरेंस है, वो अपना ब्याज पे नहीं दे सकते अपना मनी फॉर द बेसिक। So it is intended to facilitate e-payments directly through banks as part of the 16 Indian bank note demonetization. The app supports all Indian banks which use UPI, which is built over the immediate payment service, that is IMPS, जो मैंने आपको बताया था। यदि आपको पूछे कि यूपीआई किसके ऊपर काम करता है, कौन सा प्लेटफॉर्म को यूज करता है, as I said that there are three payment systems, there are three payment platforms. One is IMPS, NEFT and RTGS. तो जो यूपीआई काम करता है that is this system is built over IMPS. IMPS का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है and allows the user to instantly transfer money between bank accounts of any two parties. It can be used on all mobile devices. All mobile devices मतलब आपके पास कन्वेंशनल मोबाइल भी है, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। How you can use it? There is some code *99# मिला के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, यूपीआई आईडी बन जाती है, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसमें मैसेज सिस्टम बनाया गया एसएमएस से, यदि आप इंटरनेट सर्विस नहीं है तो आप एसएमएस से भी ट्रांसफर कर सकते हो पैसा विद द यूज ऑफ दिस यूपीआई। सो अनलाइक मोबाइल वॉलेट्स, पेटीएम, मोबीक्विक, एमपीएस, वोडाफोन पे etc. which hold money, the BHIM app is only a mechanism which transfers money between different bank accounts. जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बैंक अकाउंट्स को ही आपका वॉलेट बना देता है। ओके, now the QR code facility can be used for making payments. और भीम ऐप में एक और ऑप्शन होता है, जैसे पेमेंट पेटीएम का आपका QR कोड हम लोग डालते हैं कि आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट ट्रांसफर करते हैं। ओके, उस तरह से भीम ऐप में भी ऑप्शन है QR कोड का, that you will get your own QR code. आप किसी को QR कोड सेंड, WhatsApp पे आप QR कोड सेंड करके आप किसी को दे सकते हो। Okay, and then that person can scan that QR code. So currently there is a no charge for transaction from ₹1 to ₹1 lakh. यदि कोई इस बीच के अमाउंट में कोई पर्सन ट्रांजैक्शन करता है using BHIM UPI app, then there will be no charge. Some banks might, however, have a nominal fee for UPI or IMPS transfers. The minimum transaction amount is ₹1 and the maximum number of transactions per day is 10. Minimum amount of इतना ट्रांसफर कर सकते हो ₹1 using the UPI app, this BHIM UPI, and the maximum number of transactions per day is 10. 10,000 ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, number of transactions. Currently, the fund transfer limit has been set up to a ₹40,000 per transaction and a maximum of ₹40,000 per day for one bank account. So आपको per transaction ₹40,000 एक लिमिट रखी गई है कि आप इतना ट्रांसफर कर सकते हो, और मैक्सिमम भी आप एक दिन में इतना ट्रांसफर कर सकते हो यूजिंग भीम यूपीआई। ये थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है कि किसी को 40,000, जैसे कि इस कमिटी ने भी बोला था कि हाई वैल्यू भी आप ट्रांसफर करना है आपको राउंड द क्लॉक अवेलेबल नहीं है ये प्लेटफॉर्म सिस्टम। ओके, सो देयर इज अ लिमिटेशन कि 40,000 से आप ज्यादा ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अमाउंट यहाँ पर 40,000 का लिखा हुआ है, ये अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग अमाउंट लिखा हुआ है। यदि आप किसी सर्च करोगे कि भीम यूपीआई नेट पे, गूगल पे, कि भीम यूपीआई में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है, तो अलग साइट पे अलग अलग आएगा। कुछ लोगों ने यहाँ पर इस चीज में 20,000 लिखा हुआ है, यहाँ पर 40,000 लिखा हुआ है। दिस डेटा आई हैव टेकन फ्रॉम द भीम यूपीआई FAQs, तो मैंने वहां से इसको डेटा को लिया है। एंड इफ यू फाइंड कि कुछ भी इसमें चेंज हुए हैं तो डेफिनेटली यू कैन सर्च फॉर, ओके, कि इसमें कुछ लिमिटेड कुछ सर्च चेंज हुई है। ओके, बट बिकॉज इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग, आई थिंक ये तो कंफर्म है, ये ₹40,000 अभी मैक्सिमम ये है। ओके, भीम यूपीआई का। बट यदि आपको मिलती है कहीं न्यूज की कुछ अमाउंट चेंज हुआ, देन डेफिनेटली यू कैन टेल मी। सो भीम ऐप यूज 3-factor authentication. आई थिंक ये क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में। सो भीम ऐप यूज 3-factor authentication. One is the device IP and mobile number. पहला तो ऑथेंटिकेशन ये होता है कि मोबाइल नंबर डालना होता है आपको, डिवाइस की आईपी एड्रेस को ले लेता है भीम यूपीआई। सेकंड चीज क्या होता है, इस बैंक अकाउंट जो आपका होता है वो फिर ऐप से लिंक करना होता है। सेकंड ऑथेंटिफिकेशन ये होता है।
पहले आपको मोबाइल नंबर और डिवाइस को ऑथेंटिकेट करता है कि यू आर द राइट पर्सन, ओके। सेकंड इज द बैंक अकाउंट विच इज लिंक्ड टू ऐप, सेकंड टाइम आपको बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है। थर्ड स्टेप क्या होता है, यूपीआई पिन टू कंप्लीट ट्रांजैक्शन, आपको यूपीआई पिन क्रिएट करना होता है यूजिंग योर दिस एटीएम कार्ड और समथिंग, ओके। So this is the third step. So all this is the three factor authentication. और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, दिस इज भीम है, ये चाहिए। नाउ थर्ड रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, नंदन नीलेकानी कमिटी, थोड़ा सा उसमें हम भीम और यूपी और ये सब कर लिया हमने बीच में इसके, ओके। अदरवाइज हम नंदन नीलेकानी कमिटी की रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, रिकमेंडेशंस पढ़ रहे थे उसकी, तो हमने 2 रिकमेंडेशंस ऑलरेडी पढ़ ली। फर्स्ट रिकमेंडेशन उन्होंने टारगेट बताए थे कि हमें क्या टारगेट चाहिए, पर उन्होंने बोला कि 3 साल में उनको 10 गुना से नंबर ट्रांजैक्शंस बढ़ाने, ओके, एंड ट्वाइस से वैल्यू इंक्रीज करनी और थ्राइस से नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज करना। दिस वाज द फर्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ द नंदन नीलेकानी रिपोर्ट। सेकंड हमने पढ़ा कि पेमेंट मैकेनिज्म में इंप्रूवमेंट करना है थ्रू द एमडीआर, रिफॉर्मिंग द एमडीआर, रैशनलाइजिंग द एमडीआर। उन्होंने बोला कि पीओएस जो भी डिवाइसेस हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देनी चाहिए, ओके। जो हाई वैल्यू मनी जो ट्रांसफर्स हैं वो राउंड द क्लॉक होने चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। सो दिस थिंग्स आर रिकमेंडेड बाय द नंदन नीलेकानी कमिटी। Now the third recommendation that was made by the Nandan Nilekani committee, that is government payment system, government payments। और गवर्नमेंट पेमेंट्स में क्या होता है कि जो भी पेमेंट्स गवर्नमेंट करवा रही है या कर रही है, ओके, तो वो सारे डिजिटली होने चाहिए। नंदन नीलेकानी ने बोला कम से कम पहले गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले, जितने भी हम पेमेंट्स करेंगे वो सारे हम डिजिटली करेंगे। So that is why it is recommended that committee recommended that the government of departments must ensure that all payouts are through digital। पहले तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव खुद ले, जितने पेमेंट गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट किस चीज को पेमेंट करती है, या तो पेमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट, जैसे कि हर साल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन को बेसिकली प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट, बफर स्टॉक में वीट को प्रोक्योर करती है, राइस को प्रोक्योर करती है, एवरीथिंग, तो उसके लिए पेमेंट करनी होती है फार्मर्स को, तो वो सारी पेमेंट्स डिजिटली हो। उसके अलावा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड करती है, नरेगा को वेजेस देती है और भी बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। those all subsidies need to be provided by the digital means, and apart from that government also pays salaries, pensions, provident fund or various other things. So all these things need to be made with the digitally. This is the third recommendation of Nanda Nilekani. And fourth is about the direct benefit transfer. The committee observed certain challenges with the DBT mechanism, as the DBT not being successfully credited to beneficiary, processing errors, connectivity and authentication failures in Aadhaar payment. So what this committee suggested that कई बार कुछ प्रोसेसिंग एरर आ जाते हैं डीबीटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट ये भी बहुत रिसेंट इशू है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी न्यूज भी आई थी, इनफैक्ट ये डेटा भी आया था, आप लोगों को याद हो तो मे बी आप लोगों ने भी शेयर किया था टेलीग्राम पे। तो एक डेटा भी आया था कि कितने इंडिया में डीबीटी गलत ट्रांसफर हो रहे हैं, ओके। जैसे को याद है इस तरह कुछ न्यूज आई थी, आई थिंक 30% समथिंग एक फिगर था, कितना पैसा गलत अकाउंट्स में गया है डीबीटी से, इसको याद है। तो ये एक न्यूज आई थी द हिंदू में, तो इस कमेटी ने भी उस चीज को बेसिकली लिया है दैट आवर डीबीटी सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड, ओके। बिकॉज होता क्या है डीबीटी में, अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे भीम यूपीआई ऐप है, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे आपने वो लिंक किया, फर्ज करो आपने किसी को अपने यूपीआई दे दिया, ठीक है, इसमें पैसा ट्रांसफर करो, तो आप मान दो या तीन अकाउंट हैं, ओके, तो वो किसी भी अकाउंट को डिफॉल्ट बना देता है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया कि मेरा ये अकाउंट मेरे को डिफॉल्ट बनाना है, ओके, कि मेरे कौन से अकाउंट में पेमेंट आनी चाहिए, यदि आपने डिफॉल्ट नहीं बनाया तो आपने किसी को यूपीआई दे दिया, उसने ट्रांसफर कर दिया, आपको पता लगा कि मेरे को वैसे अकाउंट में आई नहीं है, फिर आपने सर्च किया कि फिर इसने पेमेंट तो की है, तो कौन से अकाउंट में आ गई मेरी पेमेंट, तो आप फिर सर्च करोगे तो पता लगा कि ये यूपीआई में किसी और अकाउंट को डिफॉल्ट बना रखा था, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब फर्ज करो कि एक और केस लेता हूँ मैं
कि फर्ज करो कि वो अकाउंट आपका खत्म हो गया, कि आपने अकाउंट को यूज नहीं किया काफी टाइम से, क्योंकि पहले कभी यूज होता था आपका, और अकाउंट खत्म हो गया और वो अकाउंट नंबर किसी और पर्सन को मिल गया, ओके। अब किसी ने पेमेंट की, बिकॉज वो जो मोबाइल सिस्टम है, वो पेमेंट सिस्टम है, वो भी आपका पुराने वाला अकाउंट आपके ऊपर आपका मोबाइल नंबर यूज कर रहा है, ओके, फर्ज करो, या किसी और का मोबाइल नंबर यूज इस तरह से किया था कि वो जो नया अकाउंट जिसके पास मिल गया तो पेमेंट उसको चलेगी, या कई बार होता है कि ये कुछ मोबाइल नंबर गलत चढ़ जाते हैं, ओके, बैंक से। तो इस तरह से जो जितनी प्रॉब्लम्स आती है डीबीटी में, तो उसको भी सुधारने की बात की इस कमिटी ने, ओके। सो दिस ऑथेंटिफिकेशन फेलियर्स और प्रोसेसिंग एरर्स, ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड विद द डीबीटी मैकेनिज्म. Further, lack of a dedicated grievance redressal mechanism and lack of awareness remain major impediments. इवन जो बैंक्स के जो एम्प्लॉइज हैं वो भी अवेयर नहीं होते कि वो भी एरर करते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी, ओके. So there need to be improvement for that also. That there need to be a dedicated grievance redressal mechanism. Grievance redressal mechanism मतलब किसी भी किसी को कोई grievance है, शिकायत है, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए उसको दूर करने के लिए. So government can use public financial management system. PFMS के बारे में भी पढ़ा था हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम. तो गवर्नमेंट को उसका भी यूज कर सकते हैं. कहाँ पर पढ़ा था हम लोगों ने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम? Yes, anybody? तो डीबीटी में पढ़ा था हम लोगों ने, जब हम जाम वगैरह ये सब पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो सब्सिडीज हैं, इस सबको ट्रांसफर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पीएफएमएस सिस्टम बनाया था, कोई भी पेमेंट करने के लिए. मान लो फर्ज करो नरेगा के अंदर गवर्नमेंट वेजेस भी प्रोवाइड करती है, वेजेस भी सेंड करती है. उसके अलावा कोई सप्लायर है, फर्ज करो किसी पंचायत का कोई सप्लायर है, फिर किसी ने कोई कहीं से ब्रिक्स दिया या सीमेंट उठाया उस पंचायत में, ओके, तो पंचायत को पेमेंट करनी है. तो गवर्नमेंट को सारा जो ट्रांजैक्शन होता है दैट इज थ्रू दी पीएफएमएस. और पीएफएमएस सिस्टम को यूज करने से ये क्या होता है, ये यूनिफाइड सिस्टम है, तो गवर्नमेंट को सारा पता लगता रहता है कि एक तरह से रियल टाइम प्रोग्रेस पता लगती रहती है गवर्नमेंट को कि मेरा पैसा कहाँ पर पहुंच गया. पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ट्रांसफर कर दे या रियल यूजर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा. पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देती थी तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट आगे ट्रांसफर कर रही है नहीं कर रही है, ओके. नाउ दिस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज द रियल टाइम ट्रांजैक्शन सिस्टम, okay, to transfer the various subsidies etc by the government, okay. तो इसलिए ने बोला कि इसका यूज करना चाहिए डीबीटी वगैरह में. अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मस्ट प्रोवाइड ए डेडिकेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. तो हर डिपार्टमेंट, जैसे कि एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बैठता है आरटीआई एप्लीकेशन को लेने के लिए, उसी तरह से एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए हर डिपार्टमेंट में टू टेक द कंप्लेंट्स ऑफ यूजर्स और कस्टमर्स. एंड पर्टिकुलरली इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस. वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें वो लोग बात कर सके, ओके. तो दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म नीड टू बी क्रिएटेड. एंड नेक्स्ट रिकमेंडेशन ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन. इसके बारे में उन्होंने क्या बोला नंदन नीलेकनी की रिपोर्ट में, that RBI should develop a financial inclusion index to compare different areas. The index should include parameters such as fraction of population that has a bank account, fraction of women owned accounts. तो पहले जो हमने इंडेक्स पढ़ी थी, अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट पढ़ी थी जहां से हमने स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, वो तो इंटरनेशनली सारी कंट्रीज विद इन दिस इंटर कंट्रीज को कंपेयर करता है, ओके. कंट्रीज को कंपेयर करता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रही है, और जहां पर इंडिया की रैंक 5th आई थी, 55 कंट्रीज को एनालाइज किया था, ओके. उस कमेटी ने उस रिपोर्ट ने जिक्र किया था नंदन नीलेकनी कमेटी का. उन्होंने नंदन नीलेकनी कमेटी को साथ में कर रहे हैं हम लोग. तो नंदन नीलेकनी कमेटी क्या बोल रही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एक विद इन इंडिया, ताकि जो स्टेट्स को या यूटीज को कंपेयर कर सके, तो विद इन, या किसी डिस्ट्रिक्ट्स को कंपेयर कर सके, तो विद इन इंडिया भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बननी चाहिए, ओके. और ऑब्वियसली वो इंडेक्स कौन बनाएगा? आरबीआई, ओके. So RBI should develop a financial inclusion index to compare different areas within India. Okay, this index should include parameters such as fraction of population that has a bank account. Okay, कि कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है उस एरिया के. Fraction of women owned accounts,
और उनमें से कितने अकाउंट्स वुमेन ओन्ड हैं। ओके, एक तरह से जेंडर गैप को या जेंडर इश्यू को भी बेसिकली कंसीडर कर रहा है। एक फाइनेंशियल इंक्लूजन एक इशू है, एंड विद इन दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन देयर इज अगेन इशू ऑफ जेंडर गैप विद इन ए फाइनेंशियल इंक्लूजन। एंड थर्ड इज द फ्रैक्शन ऑफ अकाउंट्स व्हिच हैव मोबाइल बैंकिंग। तो ये सारे पैरामीटर्स को यूज किया जा सकता है टू डेवलप दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एज सजेस्टेड बाय द नंदा-नीलेकानी रिपोर्ट। RRBs, regional rural banks, should be brought under digital payment ecosystem to further inclusion. Okay, तो RRBs को भी digital payment ecosystem में include करना चाहिए. Okay, that is again the recommendation of this committee. Now next point is the enabling and incentivizing digital payments. The committee recommended that existing rules need to be modified to recognize valid documents that are digitally signed by the customer to simplify KYC process. So उन्होंने बोला कि जो existing rules हैं उसको modify करना चाहिए, okay, and digital signature etc. adopt करना चाहिए to simplify the KYC process. And what is the meaning of KYC? Know your customer. Okay. अब ये भी हम लोगों ने क्लास में किया था, आप लोगों को याद है इकोनॉमिक्स में नो योर कस्टमर की डेफिनेशन में आपको बताई थी, क्या मतलब होता है इसका? एनीबॉडी रिमेंबर व्हाट इज नो योर कस्टमर और केवाईसी प्रोसेस? इकोनॉमिक्स में किया था जो हमने। यस, एनीबॉडी? It is basically to check that if that person has taken loan from other bank or not. राइट So yes, राइट। तो इसमें क्या होता है कि पहले क्या होता था कि एक पर्सन मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खोलता था, कि बहुत सारे अलग अलग बैंक्स में अपना अकाउंट खोल लेता था। अब फर्ज करो कि इस पर्सन ने एक बैंक से लोन ले लिया, फर्ज करो पीएनबी से एक लोन ले लिया, अपने घर बनाने के लिए एक लोन ले लिया, ओके, एंड उस पर्सन उस सेम सिक्योरिटीज को दिखा के लोन ले लिया या कैसे करके लोन ले लिया, ओके। अब वो सेकंड बैंक के पास आता है, ओके, फिर वो उससे लोन ले लेता है और उसके पास इतने एसेट्स नहीं है जितने वो लोन ले रहा है, उसने ऐसे मल्टीपल बैंक से लोन ले लिया और बैंक्स को आपस में पता नहीं है कि ये अलग अलग बैंक से लोन ले रहे हैं। ये पर्सन कितना ट्रस्टवर्दी है, बैंक्स को नहीं पता, बिकॉज बैंक्स के बीच में आपस में इंटरकनेक्टिविटी नहीं थी, बैंक्स को आपस में नहीं पता होता था कि बिकॉज बैंक्स एक तरह से अपने अपने काम करते थे और दे आर नॉट इंटरलिंक्ड नहीं, ओके, एंड देन दिस प्रॉब्लम वाज अराइज्ड, ओके। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? And then the answer came in the form of KYC, know your customer process. उसमें क्या हुआ कि हर पर्सन के लिए एक डिफरेंट आईडी बनने लगी। जैसे आप लोन दोगे तो उसके लिए एक आईडी बना देता था एक बैंक, ओके, तो वो आईडी शेयर की जाती थी सब सारे बैंक्स के साथ। तो मान लो वो किसी उसके पास ये सारे डेटाबेस बनाया गया है और फिर दूसरे बैंक को यदि लोन देना तो वो पहले वो डेटाबेस चेक करता था, उस पर्सन का वो एक आईडी चेक करता था या उस पर्सन का उसका नाम वगैरह चेक करके वो चेक करता था कि इस पर्सन ने कहीं से लोन तो नहीं ले रखे, ओके। दैट इज द केवाईसी प्रोसेस। ये आधार आईडी आने से पहले का सिस्टम है सारा, ओके, केवाईसी सिस्टम। आधार आईडी का 12 के आसपास बेसिकली आया था, ओके, नॉट 12, इनफैक्ट आई थिंक 9 और 10 के आसपास आया था आधार आईडी सिस्टम, ओके। उससे पहले केवाईसी प्रोसेस आई थी, ओके। तो ये केवाईसी प्रोसेस अब तो आधार आईडी आ गया तो एक काम और आसान हो गया, बिकॉज हर पर्सन का भी आधार लिंक इसलिए कह रही है गवर्नमेंट के आधार लिंक किया जाए। आधार लिंक करने से ये केवाईसी प्रोसेस और स्ट्रेंथन हो जाएगी। उसके साथ ही साथ डीबीटी ट्रांसफर भी इजीली हो जाएंगे। जो भी बेनिफिशियरीज हैं गवर्नमेंट के, जो पहले सब्सिडीज देते थे वो भी मल्टीपल, एक पर्सन को मल्टीपल सब्सिडीज भी मिल जाती थी, बिकॉज कोई पर्सन राशन कार्ड से रजिस्टर कर देता था, कोई पर्सन अपना फैमिली मेंबर को 100% को रजिस्टर कर देता था सब्सिडीज लेने के लिए। But because all these things are linked with the Aadhaar card, so ये process और आसान हो गई। So users should be allowed to withdraw small amount of cash at POS devices at a low ad valorem cost. GST of amount up to rupees 10,000 cash can be received in cash currently. It should be brought down. दो रिफॉर्म उन्होंने और बताया इस कमेटी ने कि जो हमें करने चाहिए। वन इज दी दैट जैसे आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो तो आप पीओएस डिवाइसेस से भी कुछ छोटा मोटा अमाउंट को विड्रॉ कर सके, इसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि फर्ज करो कि पेट्रोल पंप्स हैं, कि पेट्रोल पंप्स के पास काफी हार्ड कैश होता है, आपको पता है, क्योंकि उनके पास जो आता है वो कैश आता है और काफी हार्ड कैश उनके पास काफी ज्यादा होता है।
तो मान लो कोई या कोई किराना स्टोर है या वट एवर, दिस ग्रोसरी स्टोर है कोई भी, ओके। तो मान लो इस तरह के कुछ स्टोर्स हैं, तो वो पर्सन कोई जाता है तो डेफिनेटली उसको एक अलाउ कर सकते हैं कि वो अपना, एक तरह से एटीएम नहीं है आसपास, ओके, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एटीएम नहीं है, उस पेट्रोल पंप पे जाके उसने कुछ पैसे भी वो निकाल सके। उस पेट्रोल पंप वाले के पास उसके अकाउंट से पेट्रोल पंप उस मालिक के पास पैसे ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे टू दिस पीओएस डिवाइसेस। तो एक तरह से वो एटीएम का काम करेंगे जितने भी पीओएस डिवाइसेस हैं। इसको भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इनफैक्ट पेटीएम ने एक इनिशिएटिव लिया भी है कि जो भी पर्सन हमारा एक पेटीएम यूज कर रहे हैं दुकानदार, वो विड्रॉल्स भी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाएं, ओके, हमारे कस्टमर्स को। सो उसके लिए वो उनको एक कुछ रिबेट्स भी देता है, कैशबैक भी देता है, ओके, जो भी वो जो विड्रॉ करवाएंगे लोग, जो स्टोर्स हैं, किराना स्टोर्स एक्सेट्रा। इसके अलावा इस निर्णय कमेटी ने ये बोला कि जीएसटी ऑफ अमाउंट अप टू ₹10,000 कैश कैन बी रिसीव्ड इन कैश करंटली। एक तरह से भी क्या है कि जो जीएसटी पे करते हैं हम लोग, तो ₹10,000 तक का यदि जीएसटी कोई पे कर रहा है तो वो कैश में भी रिसीव हो सकता है। तो उसको इन्होंने बोला कि इसको कम किया जाए, बिकॉज यदि हमको डिजिटल इकोनॉमी बनाना है तो सारा का सारा जीएसटी या तो ऑनलाइन ट्रांसफर हो, और या फिर ये अमाउंट जो हम कैश में ले रहे हैं जीएसटी, ये बहुत कम होना चाहिए, नॉट 10,000, ओके। सो दैट रिफॉर्म इज सजेस्टेड बाय द नंदन नीलेकानी रिपोर्ट। अब ये सारी चीजें जो भी हमने पढ़ी हैं, वी हैव नॉट ओनली रेड द फाइनेंशियल इंक्लूजन और नंदन नीलेकानी रिपोर्ट। इससे रिलेटेड जो भी चीजें थी, जो भी टर्म्स बीच में आई थी, हम लोगों ने उसको भी डिटेल में पढ़ ली है, ओके। एंड देन आई होप कि ये क्वेश्चन इसमें आएगा, एंड प्रीलिम में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। एटलीस्ट वन क्वेश्चन आएगा प्रीलिम और मेंस में इस बार नंदन नीलेकानी रिपोर्ट के ऊपर। एंड मेंस में तो डेफिनेटली इसके ऊपर काफी हाई चांसेस हैं कि नंदन नीलेकानी रिपोर्ट को पूछा जाए, इफ नॉट डायरेक्टली देन इनडायरेक्टली। And now, second most important topic is high-level advisory group to recommend on current global trade scenario. That is also very much in news. इसको हम लोग पढ़ेंगे after 5 minutes. Okay.
So now we'll start with our next topic, that is high level advisory group to recommend on current global trade scenario. So recently, in fact, in 2018, a high level advisory group was formed to suggest the reform on trade scenario. So भी recently India में है क्या that just a second. अभी हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम है क्या ट्रेड से रिलेटेड दैट वी आर so what we are saying that अभी हमारे साथ प्रॉब्लम है क्या दैट ट्रेड में बेसिकली हम लोग सरप्लस नहीं है, वी आर इनफैक्ट वी आर डेफिशिएंट ऑन ट्रेड. ओके, दैट मींस वी आर मेकिंग मोर इंपोर्ट देन एक्सपोर्ट. हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव ट्रेड डेफिशिएंट. तो हमारे साथ कंट्री ये प्रॉब्लम है. तो हमारा कंट्री हम चाहते क्या है दैट हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो और इंपोर्ट कम हो, सो दैट वी कुड बी ए ट्रेड सरप्लस कंट्री. जैसे चाइना है, चाइना इज ए ट्रेड सरप्लस कंट्री. ओके, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, तो वहां पर हमने देखा था कि दैट इंडिया इज ए बिग ट्रेड डेफिशिएंट, दिस ट्रेड डेफिशिएंट अंडर दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, सो इसलिए सजीत एस भल्ला कमेटी इसलिए बनाई गई थी टू सजेस्ट रिफॉर्म्स सो दैट वी कुड इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट एज वेल एज वी कुड रिड्यूस अवर इंपोर्ट. सो दिस कमिटी was formed by Ministry of Commerce and Industry in 2018 under the chairmanship of Surjit S. Bhalla. So now what this committee recommended, we will see. The committee released its report in October 2019. अब ये देखो, ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई है ये अक्टूबर 2019 में आई. इसका मतलब आपका मेंस एग्जामिनेशन होने के बाद आई है. Okay, and that is why the report of this committee is important for prelim as well as mains. Okay, तो ये जो तो बड़े टॉपिक हैं, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ा था हमने, जो ट्रेड के ऊपर पढ़ रहे हैं अभी, ये दोनों के दोनों टॉपिक के ऊपर इस पर मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं. इनफैक्ट प्री टॉपिक डेफिनेटली प्रीलिम में इस पर एक क्वेश्चन आएगा एलिफेंट बॉन्ड के ऊपर. ओके, इस साल जो कि इस कमेटी में जिसने जिक्र किया था. ओके, सो विल सी व्हाट इज दैट. सो द कमिटी रिलीज्ड इट रिपोर्ट इन अक्टूबर 2019 टू एड्रेस द चैलेंजेस इन द करंट ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो. सो अक्टूबर 2019 में इसकी रिपोर्ट आई थी. Now we'll see what are the recommendations. What are the recommendations of this committee? So now first recommendation is that we need to increase our export. तो जैसे पहली रिकमेंडेशन होती है हर किसी कमेटी की होती है, वो होता है टारगेट टिक देती है कमेटी कि इतना हमें वो टारगेट अचीव करना है. जैसे हम नंदन ने वाली कमेटी पढ़ा था, उन्होंने भी टारगेट दिया कि 3 साल में हम लोग को 10 गुना करना है ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन. इस तरह से ये कमेटी की सबसे पहले रिकमेंडेशन क्या थी कि हमारा जो कंट्री में एक्सपोर्ट है उसको हम लोगों ने इंक्रीज करना है फ्रॉम $500 बिलियन टू $1 ट्रिलियन. दैट मींस ऑलमोस्ट डबल. ओके, $500 बिलियन in 2018 to $1 trillion by 2025. That is a target suggested by this committee. Now what are the next recommendation? It proposed to enhance the capital base of the Exim Bank by 20,000 crore by 2022, and that of the Export Credit Guarantee Corporation by rupees to 350 crore. तो सेकंड जो रिकमेंडेशन दी इस कमेटी ने, दैट वाज टू इंक्रीज द कैपिटल बेस. कैपिटल बेस का मतलब कि उस बैंक के पास कितना कैपिटल होगा जिसको कि वो आगे कुछ स्कीम्स कर प्रोवाइड कर सके. एक्सिम बैंक के हमने इसका फुल फॉर्म एक्सिम बैंक की होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक. ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक. तो एक बैंक बनाया गया था टू फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट इन अवर कंट्री. उसके लिए एक बैंक बनाया गया था. तो ये बैंक के थ्रू बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है टू इंसेंटिवाइज द एक्सपोर्ट, टू प्रोवाइड वेरियस इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट. तो इसकी कैपिटल अभी रिसेंटली बढ़ाने की बात की है इस कमेटी ने, दैट इज इसकी कैपिटल 20,000 करोड़ से इंक्रीज की जाए सो दैट वी कुड मेक मोर इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट्स. लाइकवाइज there was a scheme, Export Credit Guarantee Corporation, guarantee scheme, and for that we have created Export Credit Guarantee
कॉर्पोरेशन, तो इसकी भी कैपिटल बढ़ाने की बात हुई बाय रुपीज 350 करोड़ टू फैसिलिटेट अवर एक्सपोर्ट. So this is our second point. And apart from that, India should aim to bring down the cost of capital to the average of 10 best performing OECD countries. So उन्होंने क्या बोला? Cost of capital का मतलब क्या होता है यहाँ पर? Okay. कि उस कोई भी एंटिटी है उसको अपनी कैपिटल को बनाने के लिए कितना खर्चा लग रहा है. ओके, मान लो बैंक्स हैं, बैंक्स को उस कैपिटल को अचीव करने जैसे हमने बात की थी कि इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात की, हमने मर्जर ऑफ बैंक्स की जब बात की थी, देन वी हैव सेड दैट with the making this merger of banks, the cost of capital will be reduced because same infrastructure, same manpower हम लोग ज्यादा लोगों के लिए यूज कर सकते हैं. That means our cost of capital will reduce after the merger of banks. So likewise, this committee recommended that cost of capital need to be reduced to the average of 10 best performing OECD countries. और OECD countries क्या है, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. मैंने को बोला भी था कि OECD countries को पढ़ के ना और उनके नाम देखना कि 10 countries कौन सी हैं OECD. ओके, तो ये OECD countries काफी अच्छी मानी जाती है कि ये जो फाइनेंशियली काफी अच्छा कर रही हैं. ओके, दे आर मोस्ट स्टेबल कंट्रीज. ओके, कौन कौन से मेंबर हैं इसके OECD कंट्रीज के? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट. यस, उसको देखकर आना आप लोग, यदि आप लोग नहीं देखा इसको. तो 10 बेस्ट परफॉर्मिंग OECD कंट्रीज. तो उन्होंने बोला कि जो OECD कंट्रीज हैं उनकी जो 10 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं उनका बेसिकली एवरेज ले लीजिए हम लोग, एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इन कंट्रीज में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ता है इन 10 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बराबर हमको इंडिया में कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स को लेकर आना है, उतना हमने कम करना है अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, सो इंडिया शुड, नेक्स्ट रिकमेंडेशन, इंडिया शुड कट कॉर्पोरेट टैक्स रेट टू 22%. ओके, विद एग्जम्पशंस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद एग्जम्पशंस. This will yield an effective corporation tax rate of 18%. तो हम लोग को पता कि कॉर्पोरेशन टैक्स रेट रिड्यूस किया भी गवर्नमेंट ने, आप लोगों को याद होगा व्हेन आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड द रिडक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन टैक्स. कितने से रिड्यूस हुआ था? यस, कॉर्पोरेशन टैक्स रेट रिड्यूस टू 22%. याद है आप लोगों को? हम लोग ने क्लास में भी किया था इसको. तो कॉर्पोरेशन टैक्स रेट 22% तक लेके आने की बात इस कमेटी ने भी की थी, और इस कमेटी की कोई रिकमेंडेशन कोई गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था बेसिकली. ओके, और कॉर्पोरेशन टैक्स रेट कम किया तो 22%. और दोनों में फर्क क्या है? इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था और एक्चुअली हमने किया क्या है, दोनों में फर्क समझ लो आप लोग. इस कमेटी ने ये बोला कि 22% का कॉर्पोरेशन टैक्स रेट आप कम करोगे और टैक्स रेट को 22% लेकर आ जाओगे, बट उसके बाद आपको एग्जम्पशंस जो पहले मिलते थे वो अभी भी मिलेंगे. फिर तो आपका कॉर्पोरेशन टैक्स कम हो गया, 22% तक हो गया आपका. और जो थोड़े बहुत एग्जम्पशंस आपको मिल रहे थे गवर्नमेंट स्कीम से या कुछ वेरियस अदर एग्जम्पशंस, जैसे कि इंश्योरेंस के ऊपर आपने एग्जम्पशंस मिल गया आपको. ओके, तो एग्जम्पशंस को भी यदि काउंट कर लें तो ये इफेक्टिवली हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स कितना हो जाएगा? 18%. ओके, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है? एक्चुअल में जो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया है? दैट कॉर्पोरेट टैक्स रेट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 22%, सॉरी 22%. ओके, बट विदाउट एग्जम्पशंस. इसका मतलब क्या? यदि कॉर्पोरेशन टैक्स आप 22% पे कर रहे हो तो आपको एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे. यस, ऐसा ही हुआ था. ओके, Yes. okay. So now next recommendation, what is next recommendation? Policy operations should now fully incorporate the technology of direct benefit transfer. And next what it suggested that policy operations should now fully incorporate the technology of direct benefit transfers. तो जो भी जैसे कि मान लो ये एक्सिम बैंक है, जो स्कीम है, ओके, वेरियस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स हैं, उसके अंदर जो भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं, पेपर्स में ये भी इशू होगा कि ये ट्रांसफर काफी डिले होते हैं. जैसे कि हम लोगों ने क्रेडिट स्क्रिप्ट्स पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मर्चेंट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम एंड SCIS, MEIS एंड SCIS. इसके सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम एंड मर्चेंट एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम. उसके अंदर हमने पढ़ा था, एक टर्म पढ़ी थी क्रेडिट स्क्रिप्ट,
और आई थिंक मैंने आपको मटेरियल भी दिया था इसके, याद आया आपको? मैंने मटेरियल दिया था इससे कुछ, प्रिंटिंग मटेरियल दिया था मैंने आप लोगों डिस्कस किया था क्लास में। को। हाँ राइट, क्लास में मेरे को मटेरियल भी डिस्कस भी किया था और इनफैक्ट आपको मटेरियल भी दिया हुआ है इसके ऊपर। ओके, सो उसमें MEIS स्कीम के अंदर क्रेडिट स्क्रिप्ट्स रिलीज होती थी, एक तरह के सर्टिफिकेट होते थे कि यदि किसी के पास सर्टिफिकेट है तो उसको बेसिकली एग्जामिशंस अचीव कर सकते हो, जो भी उसको इंसेंटिव्स मिले हैं स्पोर्ट में तो वो उसको वो ले सकते हो। ओके, एग्जामिशन आई मीन सर्टिफिकेट्स का यूज करते हुए वो ड्यूटी स्क्रिप्ट्स जो बेसिकली सर्टिफिकेट्स होते थे। ओके, तो उसको दिखा के और अपना वो एग्जामिशन से ले लेते, तो वो जो सारे एग्जामिशंस हैं, जो सारे एक तरह की सब्सिडी है वो गवर्नमेंट की, तो वो जो ट्रांसफर होगी वो दैट शुड बी ट्रांसफर्ड बाय द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज करना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज द यूज बिग डेटा एनालिटिक्स फॉर आइडेंटिफाइंग आइटम्स एंड 4 डिजिट हार्मोनाइज्ड सिस्टम। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, HS सिस्टम level, where India has an export advantage and building up domestic competitiveness in these products. A database of FTAs, free trade agreements, RTAs, regional trade agreements, and CEPAs, comprehensive economic partnership agreements, etc. need to be prepared. तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा हार्मोनाइज सिस्टम जो आपको डिस्कस किया था, HS कोड डिस्कस किया था हम लोगों ने। At that time I said कि मसला इशू क्या है कि this HS code was released to ensure the quality products. Okay, और एक प्रोडक्ट का HS कोड बेसिकली एक सिस्टम बनाया गया जिससे कि आप प्रोडक्ट का HS कोड देख के, और हमारे इंडिया में क्या होता था कि ये बिना HS कोड देखे भी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी आ रहे, खासकर चाइना के प्रोडक्ट्स। तो हम इस HS मैकेनिज्म को फुली यूज नहीं कर रहे थे काफी टाइम से। सो अभी क्या होगा, यदि हम लोग HS कोड का फुली यूज करेंगे, देन द कंट्रीज व्हिच आर डंपिंग देयर गुड्स, जैसे कि चाइना या अदर कंट्रीज लाइक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जिनकी क्वालिटी इतनी प्रोडक्ट्स की नहीं है, देन वी कैन मेक ए नॉन टैरिफ बैरियर। ये HS कोड एक तरह का नॉन टैरिफ बैरियर है। टैरिफ बैरियर में क्या होता है, जैसे कि आपने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया या आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया, काउंटर वैल्यू ड्यूटी लगा दी, ये सब टैरिफ बैरियर्स होते हैं। और नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे मैंने आप लोगों ने HS कोड को यूज कर लिया, आपने डिफाइन कर दिया कि हम लोग आपको प्रोडक्ट इसलिए इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ लोअर इन क्वालिटी। अब उसमें वो दूसरी कंट्री कुछ नहीं बोल सकती बिकॉज यस यू हैव योर रेशनल रीजनिंग। ओके, सो इस तरह से इस कमेटी ने भी ये बोला दैट यू शुड यूज द HS कोड mechanism to sort various products and to restrict those products which are lower in quality. And apart from that, a database of various free trade agreements etc. need to be prepared. तो जितने भी कंट्री से हमारा FTA वगैरह साइन हुआ, जिनके प्रोडक्ट्स हमारे डंप हो रहे हैं हमारी कंट्री में, तो वहां पर HS कोड मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट किया जाए। And next recommendation of this committee, Bhalla committee, is to make Invest India the centralized authority for issuing licenses and empower it to grant incentives in cases of meeting predefined criteria. तो उन्होंने बोला कि एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी बनाई जाए लाइसेंस वगैरह इश्यू करने के लिए as per predefined criteria. Okay, and apart from that, an apex trade promotion organization also should be created. और जितनी भी जो पहले ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, सेपरेट एंटिटीज बनी हुई हैं और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, DGFT, TPO, TP से DCPI, they should be merged and one apex trade promotion organization should be created. A centralized body should need to be created. And apart from that, to create a world class war room to realize single window clearance. तो जो भी हमारे जो फर्म्स हैं, तो जिनको जो बेसिकली ट्रेड से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, सो उनके लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म बनाना चाहिए, सो दैट आवर एक्सपोर्ट कुड राइज। ओके, सो एक तरह से जो पेपर वर्क है उसको रिड्यूस करके एक सिंगल विंडो, इनफैक्ट रेड टेपिज्म खत्म करनी चाहिए ट्रेड प्रमोशन के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, एंड देयर शुड बी ए मैकेनिज्म ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस। To optimize FTAs, the process need to start to identify and resolve non-tariff barriers which prevent Indian exports. इनफैक्ट किसी को याद आ रहा है, हम लोगों ने कुछ सिंगल विंडो क्लियरेंस की एक चीज पढ़ी थी हम लोगों ने, इनफैक्ट करंट के क्लासेस में पढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले, कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बिग प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है
ये सीधा पीएम बॉस को देखेगा। यस, इसको याद आ रहा है, अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने। इसको आप लोग रिवाइज करो। ओके, इस तरह की चीज हमने पढ़ी थी इस टाइम पहले। So optimize FTAs, a process need to start to identify and resolve non-tariff barriers which prevent Indian exports from accessing key importing nations. उसके साथ साथ ये भी बोला हम लोग इन्होंने कि दैट वो जो सारी कंट्रीज जिनके साथ हमारा FTA साइन हुआ है, ओके, और वो कंट्रीज नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा रही हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, तो उनको भी असेस किया जाए, ओके, एंड उनके साथ बात की जाए टू रिड्यूस दिस नॉन टैरिफ बैरियर्स, ओके, सो दैट Indian exports could be competitive. And the most important point of this recommendation is the issuance of elephant bond, जिसके ऊपर इस साल प्रीलिम क्वेश्चंस आ सकते हैं। There are very much chances. पहले मसाला बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। Now this year this elephant bond can be asked, which was in very much news because of these recommendations. इसको समझते हैं now what is elephant bond. And it's very fancy, काफी fancy bond है ये, काफी यूटिलिटी भी है इसकी। Now we'll see what is this elephant bond. So elephant bond is an avenue for people to bring their money stashed offshore without fear of being prosecuted. यदि मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो ब्रीफ में इस बॉन्ड का मतलब ये है, ये बॉन्ड है बेसिकली ब्लैक मनी को वापस लेके आने के लिए। वो ब्लैक मनी जो कि फॉरेन कंट्रीज में पड़ी हुई है, जो इंडियंस मनी को छुपा के फॉरेन बैंक्स में जमा करवा देते हैं, ओके। एक टर्म पढ़ी थी हम लोगों ने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए, याद आया आप लोगों को इकोनॉमिक्स में? किसी को याद है? राउंड ट्रिपिंग करके याद आया आपको कुछ? जैसे नहीं पढ़ी राउंड ट्रिपिंग? नहीं। सो ये सारे आप नोट्स में है, सारी चीजें आपकी इकोनॉमिक्स के नोट्स को प्लीज रिवाइज करो, ओके। हिस्ट्री का पॉलिटिकल टेस्ट लेने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे शायद में भी इकोनॉमिक्स का ले लें हम लोग टेस्ट, ओके। सो राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है कि जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट कर दिया जाता है, उस पूरी प्रोसेस को राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं, ओके। ये टर्म आई थिंक मैंने बात की थी क्लास में। तो इसमें क्या होता है कि ये एलिफेंट बॉन्ड हम इसलिए रिलीज कर रहे हैं ताकि जो हमारी ब्लैक मनी फंसी हुई है, जो हमारी कंट्री मनी फंसी हुई है एज ए ब्लैक मनी दूसरी फॉरेन कंट्री से, वो वापस लाई जा सके। कैसे वापस लाएंगे? इसके लिए गवर्नमेंट एक बॉन्ड इश्यू कर रही है, एलिफेंट बॉन्ड। वो गवर्नमेंट बोलेगी जिनके लोगों के पास ब्लैक मनी है फॉरेन कंट्रीज में, ओके, वो लोग डरे नहीं, अपने बोले कि हमारे इतनी मनी हम वापस लेके आना चाहते हैं कंट्री में, ओके। आपके अंदर कोई आपको फाइन नहीं लगेगा, अलग से कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, कोई आपको जेल नहीं मिलेगी, एंड कुछ भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन होगा क्या, आपको सिर्फ एक जस्ट थोड़ा सा, एक तो आपको टैक्स पे करना है 15% का, हम पढ़ेंगे भी वो सब डेटा, और उसके अलावा एक बॉन्ड हम बना रहे हैं एलिफेंट बॉन्ड, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, उसमें भी आपको पैसा ही मिलेगा, डोंट वरी, और जो बाकी बचा हुआ पैसा वो आप रख लो, ओके, एज ए योर इनकम। तो एक तरह से अब गवर्नमेंट को लगता है कि यही तरीका है कि वो पैसे वापस लाने का, क्योंकि यदि हम उसको उनको डराएंगे कि आपको पनिशमेंट को मिलेगी या इस तरह से, तो वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा इंडिया में, ओके। तो गवर्नमेंट evolved, I mean this committee recommended this elephant bond, okay, to bring back that black money. तो समझते हैं हम लोग, under the proposed mechanism, those disclosing their black money, in fact this is a foreign black, I mean this is a black money which is in the foreign banks. So those disclosing their black money will receive immunity from all laws, including under foreign exchange, black money and taxation laws. कोई भी लॉ में किसी भी तरह का भी इंप्लीमेंट नहीं होगा इनके ऊपर, जो लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं अपनी ब्लैक मनी दैट इज इन दी फॉरेन बैंक्स। वंस दे डिक्लेयर देयर ऑफशोर मनी, ऑफशोर मतलब फॉरेन बैंक्स में जो भी फॉरेन कंट्रीज में उनकी मनी पड़ी हुई है, वंस दे डिक्लेयर देयर ऑफशोर मनी, they will be asked to invest 40% of that amount in these elephant bonds. उनको बोला जाएगा जो भी आप मनी वहां पर से लेकर आ रहे हो, मान लो किसी के 100 करोड़ पड़े हुए हैं फॉरेन बैंक में, स्विट्जरलैंड बैंक में, स्विस बैंक में पड़े हुए, तो 100 करोड़ में से 40 लाख
तो उसको एलिफेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट की बॉन्ड है ये एलिफेंट बॉन्ड्स, इनका नाम दिया गया एलिफेंट बॉन्ड से। तो गवर्नमेंट के बॉन्ड उसको परचेज करने पड़ेंगे, कंपल्शन है, इट्स नॉट दिस ऑप्शनल, इट्स ए मैंडेटरी कि आपको 40% कम से कम आपकी जो भी मनी आप ला रहे हो फॉरेन से, जो आपकी है फॉरेन से ला रहे हो, तो 40% आपको एलिफेंट बॉन्ड्स परचेज करने पड़ेंगे। एंड ए फिक्स्ड कूपन सिक्योरिटी विल बी इशूड, और आपको बॉन्ड एक कूपन सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी जिससे कि आपको फर्दर कुछ टाइम बाद आपको पैसे आपको मिल जाएंगे। 45% आपको जो भी मनी आप ला रहे हो वो आपको खुद को मिल जाएगी, ओके। एंड 15% विल बी कलेक्टेड एज टैक्स। तो इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ये देखो ये टोटल अनडिस्क्लोज्ड जो मनी है, जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, उसका 15% तो टैक्स पे हो जाएगा, गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी 15%, वेरी लेस, इट्स वेरी लेस। 45% उस पर्सन को वो मिल जाएंगे, उसको वो कुछ भी यूज कर सकता है, एक तरह से उसने अपना 5% तो उसको इमीडिएटली मिल जाएंगे इतनी मनी। 15% से टैक्स दे दिया तो इतना हो गया 60%, बचा 40%। जो बचा हुआ है उसको एलिफेंट बॉन्ड परचेज करने पड़ेंगे गवर्नमेंट। एंड दिस एलिफेंट बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, 20 से 30 साल तक का एक इन्वेस्टमेंट होगा। इट्स आर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, एक तरह से उनकी इस पर्सन की मनी ब्लॉक हो जाएगी, इतनी मनी इस बॉन्ड में ब्लॉक हो जाएगी 20 से 30 साल तक, और उसको कितनी रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, कूपन रेट ऑफ 5%। तो इंटरेस्ट रेट भी इस पर्सन को कम मिलेगी ऑब्वियसली, अब कुछ तो उसको पनिशमेंट देंगे हम लोग, ब्लैक मनी लेके बैठा था पर्सन को, तो उसको इस कूपन रेट ऑफ 5% से उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा इतने टाइम तक, 20 से 30 साल तक। लेकिन इतने टाइम बाद उसको इस पर्सन को मनी मिल जाएगी अपने वापस, ये जो 45% ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऐड करने के बाद। So this is elephant bond. So by issuing elephant bonds, India could recover. ये कमिटी ने एक estimate लगाया है that by issuing elephant bonds, India could recover up to $500 billion of black money stashed overseas. Okay. So this is all about elephant bonds. यदि किसी को डाउट है डेफिनेटली पूछ सकता है, बिकॉज ये प्री मेंस पर क्वेश्चन आएगा। ओके, anybody want anything? Okay, so next recommendation of this committee is about the simplify regulatory and tax framework for foreign investment funds and individual investors to enable onshoring of fund management. So इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो टैक्स लॉज हैं, उनको भी सिंप्लीफाई किया जाए, so that individual investors could enable the fund management activity in India. And the last recommendation which was made by this committee, that this committee panel favors India joining Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, और इस पैनल ने या वहां पर हमने ये बोला था कि that India refused to join this RCEP. और RCEP था क्या? Anybody? इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुके हैं। यस सर, ASEAN plus 6 FTAs का ग्रुप था ट्रेड के लिए। अभी वो 6 नहीं है, अभी वो -1 हो गया, इंडिया माइनस है उसमें से ना। तो 5 ही अभी इस पार्टनरशिप के जो मेंबर्स हैं वो एशियन कंट्रीज, 10 एशियन कंट्रीज प्लस 5 FTAs, बिकॉज इंडिया इज नॉट ए पार्टिसिपेंट ऑफ दिस RCEP. तो ये याद रखना कि इंडिया का मेंबर नहीं है, सो इट्स नॉट 6 FTA नाउ, इट्स 5 FTAs. So as India gain even more from joining the RCEP, like free trade area, when the US and China are indulging in the bilateral trade war. इस कमिटी कैसा सोचना था कि इंडिया को RCEP को ज्वाइन करना चाहिए, because India could achieve more by joining this RCEP, because ये सब जो recommendations है वो ट्रेड के लिए, our export import, to increase our export and reduce our import. तो इस कमिटी कैसा मानना था कि यदि इंडिया ज्वाइन करता है RCEP को, then India will gain more, because US और China already trade war में indulged है, and India now can take that space, and India can make more exports in the Southeast Asian nations by joining this RCEP. So these are the all recommendations of this
Palla committee. Okay, and this is it with this current affair class. And after 5 or 10 minutes, we will discuss about art and culture.